Good morning, everyone. A very warm welcome to everyone in this today's session. After 2 months, we are back and we are back with Macbeth. Today, we are going to start off with our class 12th Macbeth. Okay, now this is class 12th Macbeth, that is from Act 3, Act 4, Act 5. We're gonna have class 12th syllabus, which will be your board syllabus. Okay, so we're gonna study according to that. Okay, so today we're going to start Act 3, Scene 1 of Macbeth, which is very important and one of the most lengthy scene, right guys? So here you can see the total number of like slides I have made, that is 10. Okay, 10 slides are there, which are really big, but we are going to do them in one shot. Okay, as we are doing from the past times. Okay, we are doing Macbeth in one shot only, so we'll try to finish this Macbeth Act 3 Scene 1 in one shot only. Okay, so I hope each one of you is very healthy, each one of you is very excited as well for your Act 3 Scene 1. You are waiting so many time, right? You were waiting for class 12 syllabus from so many time, right? So let me tell you, let me clear you, if you have not watched, I have already posted the two poetries for your class 12th. Okay, that is the one was a telephone conversation by Wole Soyinka, and next Theodonas by Alfred Lord Tennyson. Okay, you could visit over there. Now we are going to start with Macbeth Act 3 Scene 1. Okay, and I hope you came here, you have come here after revising your previous scenes, means as I have posted in the community box. Okay, I have posted in the community box that you have to revise the previous scenes before entering to this new class. You have to revise those Act 2, Act 1 and Act 2 very nicely, because this is a drama and drama needs continuity, it needs a hierarchy. Okay, so you have to be very clear with past speeches of Macbeth, Banquo, Lady Macbeth, Ross Angus, everyone's speech. You should be very clear with that. Okay, so if you have not watched, please you have to watch those summary lectures. I'm not saying watch those again. You see summary lecture. That's why I made the summary lecture. Now, what's the benefit of summary lecture? मैंने क्यों बनाए थे summary lecture? जैसे कि आप लोग उसे रिवाइज कर पाए इस वक्त. Right now, this is the right way, this is the right time when the summary lectures will be very beneficial to you. Okay, for an influx revision, for an immediate revision, you need those summary lectures. That's why I made. So what you do before entering to this class, please guys, go back and see those summary lectures if you are forgetting the scenes, because this is drama and drama needs continuity, right? So let's start. I'm directly going to have the Act 3 Scene 1, because this scene itself, it is very lengthy, right? So let's go. Before that, let me show you a graph. This is a graph, I hope everyone know it. Okay, this is a graph of a drama, how a drama goes. Every drama, not only this Macbeth, every Shakespearean or every poet or writer drama, it follows generally. In general, I'm saying in general, it follows this pattern. Okay, the one is exploitation. Exploitation means the beginning, the starting of the drama, or you can say a story where you have to introduce about the characters, as we have done in Act 1 Scene 1 in class 11th. We have started drama before starting Act 1 Scene 1. We have seen those characters, right? So this was what? Exploitation. Okay, then we move up and here we comes to rising action. Now here we are having the rising action. This, okay, you could see beta that Act 1, from Act 1 till Act 3 we are having the rising action. This is the rising action. Okay,
where you could see the conflicts between the main characters, the problems, the sufferings, the happiness, everything you see over there. This is the rising action where main leader, where the main actor faces little problem. So still we are seeing the rising action till act 3 scene 2. We are going to see this rising action. Now comes to climax. You all know climax is the most demanding part of every audience need climax. If a poet, sorry, if a drama is lack of climax, that drama is said to be the most worst drama. Okay, so climax is a very high demand of people. Still now, still people need climax, right? What the climax, what is going to be the climax, right? So that climax we are going to see in act 3 scene 3. In act 3 scene 3 we are going to see this climax. Yep guys, just wait for one more scene. After that we are going to see the climax. Then we come to falling action. What's the meaning of falling action? Falling action is that, by the name you could suggest that the now the characters, they are becoming fade. Now the characters are going to die. Now the character is going to end, same as in Macbeth. Now Banquo and Flans, they both will be in trouble in this act 3 scene 1, but Flans, he flew away and Banquo died. Okay, so in act 3 scene 1 what will happen, I'll tell you later on. Okay, after falling action we are having the resolution. Resolution is the solution of the entire drama. You could see the conclusion. What happened in this drama? Why this drama took place in our life? What was the cause of this drama? That was resolution, the end of the story. Total. And like in Macbeth, in this Macbeth, we are going to see the tragedy. We are going to see the death of Macbeth at the end. So that will be the resolution. In Merchant of Venice, we have seen there was the meeting. All were, they met, right? Portia, and this one Antonio Bassanio, they all met together and they all lived a happy life. That was a good ending, right? So this is all a graph. A graph goes like this. Exploitation means there's nothing, a gradual change. Okay, there's nothing, a gradual change. Then come a rising action, means there's a sudden change, sudden excitement is going to happen. Then comes to the climax, most exciting part, most demanding part of audience, right? Then comes falling action, is the drama is going to end. Everyone is going to be in either in misery, everyone is going to either they are like departure from each other. So this is what falling action. And after that we are having the resolution. Resolution means the end of the story of the drama. Okay, so guys, I hope you are clear with this graph. This is very important. Okay, this is a plot diagram. So let's start now. Okay beta, because this is a very lengthy scene, so we need to be very clear about it. So let me tell you what is going to happen in act 3 scene 1. See, in act 3 scene 1, first of all this scene takes place in forest. Okay, this ये जो सीन है वो फॉरेस्ट में होता है. फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट वो जगह है जहाँ पे डंकन का पैलेस है. ठीक है, अब डंकन का पैलेस है या डंकन का पैलेस था, आप लोग मुझे बताएंगे. डंकन अभी भी जिंदा है या डंकन मर चुका है? Yep guys, Duncan has died. Macbeth, he has killed the Duncan. He has stabbed the knife in his bosom, in his chest. Okay, so Macbeth has killed Duncan. He has murdered Duncan. Now this forest is now, who will take the forest? Duncan's son. बट जो डंकन के बेटे हैं वो दोनों तो भाग गए. डोनाल्ड एंड बैंक्यू, वो दोनों तो भाग गए ना. तो अब क्योंकि डंकन के दोनों बेटे भाग चुके हैं, जो हमारी स्कॉटलैंड की क्या है आप कह सकते हैं, जो हमारे स्कॉटलैंड के पीपल हैं
उन्होंने मैकबेथ को एज अ न्यू किंग अपॉइंट किया है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो विचेस हैं उनकी थर्ड प्रोफेसी भी कंप्लीट हो जाती है। 3 प्रोफेसीज थी, थ्री प्रोफेसीज थी। द फर्स्ट प्रोफेसी वॉज यू विल बी द थैन ऑफ काउडर, ओके, थैन ऑफ काउडर होगे तुम। देन यू विल बी द थैन ऑफ ग्लैमिस होगे, एंड देन यू विल बी द फ्यूचर किंग। वो थैन ऑफ काउडर पहले से था, ओके, थैन ऑफ ग्लैमिस वो पहले से था, तो वो तो एक जो थी वो मतलब ऑलरेडी कंप्लीटेड थी। थैन ऑफ काउडर फिर बना है बाद में, जब उसने किसे मार दिया था, द ट्रेटर थैन ऑफ काउडर, जो ट्रेटर था, जो गद्दार था, उस थैन ऑफ काउडर को मार दिया, तब वो थैन ऑफ काउडर बना है। और नेक्स्ट आज वो किंग बना है, क्यों बना है किंग? क्योंकि ऑडियंस की नज़र में वो सबसे नॉबल पर्सन है। इवन डंकन की नज़र में ही वॉज द मोस्ट नॉबल पर्सन, है ना, तो इसलिए वो किंग बना है। बट यहाँ पर एक शख्स है जिसे सस्पिशन है, जिसे शक है कि मैकबेथ ने कुछ तो गलत काम किया है इस किंग के पीछे, मतलब ये किंग बनने के पीछे इसने कुछ तो गलत काम किया है। और वो कौन है? बैंक्यो, ठीक है, वो कौन है? बैंक्यो है। अब यहाँ पे विचेस की नेक्स्ट प्रोफेसी जो कि बैंक्यो के लिए थी, वो भी सुनिए, वो भी याद करिए आप लोग कि विचेस ने क्या कहा था कि बैंक्यो, भले ही तुम मैकबेथ से कम होगे पर उससे ज़्यादा होगे, लेसर देन मैकबेथ बट यू विल बी द मोस्ट, ओके। इस तरीके से स्पीच थी, मुझे अभी याद नहीं आ रही है, ओके। तो उसका कहने का क्या मतलब था कि तुम तो किंग नहीं बनोगे बैंक्यो, विचेस कह रही थी तुम तो किंग नहीं बनोगे, बट तुम्हारा बेटा फ्लेंस, ओके, तुम्हारा बेटा फ्लेंस ही विल बी द फ्यूचर किंग। जब ये बात मैकबेथ ने सुनी, है ना, कि अरे ये कैसे हो सकता है कि मेरे बाद मेरे चाइल्ड को किंग बनना चाहिए। वैसे अभी तो कोई चाइल्ड का यहाँ पे जिक्र किया नहीं है अभी तक कि मैकबेथ का कोई चाइल्ड था, बट मैकबेथ ये कह रहा था कि मेरे बाद, है ना, मेरे चाइल्ड को बनना चाहिए था किंग, राइट। बट यहाँ पर बैंक्यो का बेटा फ्लेंस किंग बनेगा, तो इसलिए इसी चक्कर की वजह से मैकबेथ ने क्या किया, इस सीन में बता रहा हूँ मैं, एक्ट 3 सीन 1 में मैकबेथ ने बैंक्यो और फ्लेंस को मारना चाहा। अब यहाँ पर जब वो बैंक्यो जा रहा होता है, ओके, जब बैंक्यो अपने घोड़े के साथ जा रहा होता है, बैंक्यो और फ्लेंस दोनों, है ना, कहीं बाहर जा रहे होते हैं घूमने ऐसे ही, राइट। तो मैकबेथ पूरा प्लान एग्जीक्यूट कर देता है अपना, किसे मारने के लिए? बैंक्यो और फ्लेंस को मारने के लिए। पर बैंक्यो और फ्लेंस में भी उसका मेन टारगेट कौन था पता है? फ्लेंस, क्योंकि फ्लेंस ही तो हमारा फ्यूचर किंग होगा बाद में। मैकबेथ के बाद, जब मैकबेथ का शासन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद कौन होगा? बैंक्यो होगा, बैंक्यो का बेटा फ्लेंस होगा, ओके। तो फ्लेंस ही तो मेन ट्रबल है उसके पाथ पे, तो इसलिए मैकबेथ का असली निशाना कौन था? फ्लेंस था। बट डेस्टिनी, यू ऑल नो दैट अ मैन कैन नॉट चेंज द डेस्टिनी, अ मैन कैन नॉट चेंज द फेथ और द फॉर्च्यून ऑफ द पर्सन। अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपका भविष्य बदल सकता हूँ, विल आई बी एबल टू डू दिस? नो, I cannot, because I'm not having that much of power, I'm not having that much even tendency, that much amount of tendency, right? तो यहाँ पर क्या होता है, मैकबेथ बैंक्यो को मार देता है, बट फ्लेंस वो बचकर भाग जाता है, क्योंकि भविष्य ने, या आप कह सकते हैं वो बैंक्यो की किस्मत ने, जो फ्लेंस की किस्मत है उसने मंजूर नहीं किया था कि फ्लेंस अभी मरे, ओके। तो मोटी मोटी ये सारी बात है, ओके, ये सारी बात है। तो बैंक्यो और फ्लेंस को मारने के लिए मैकबेथ ने 2 क्रिमिनल्स अपॉइंट किए थे, ओके, 2 क्रिमिनल्स अपॉइंट किए थे, ओके। तो चलिए अब नाउ शुरू करते हैं हम अपना एक्ट 3 सीन 1। लेट्स स्टार्ट। बहुत बातें हो गई। नाउ हियर
एंटर बैंक्यो. ओके, एंटर बैंक्यो. बैंक्यो एंटर करता है. सीन कहाँ का है? फॉरेस्ट का है, विच इज़ द पैलेस ऑफ मैकबेथ नाउ. फॉरेस्ट अब क्या है? मैकबेथ का पैलेस है. अभी तक किसका पैलेस होता था? डंकन का होता था, बट डंकन इज नो मोर नाउ. तो अब ये किसका पैलेस है? मैकबेथ का पैलेस है. नाउ बैंक्यो सेज, enter Banquo, and Banquo says, "Thou hast it now, King, Cawdor, Glamis, all as the weird women promised, and I fear thou playedst most foully for it. Yet it was said, it should not stand in thy posterity. But that myself should be the root and father of many kings." यहाँ पर बैंक्यू क्या कहता है? बैंक्यू कहता है, अब तुम्हारे पास सब कुछ है. यू हैव द क्राउन नाउ, यू हैड्स इट नाउ. नाउ का मतलब है क्राउन. इट का मतलब है क्राउन. तुम्हारे पास क्राउन है, मतलब अब तुम किंग बन चुके हो. नाउ यू आर द किंग. काउडर, ग्लैमिस, तुम सब कुछ हो. तुम किंग भी हो, तुम थान ऑफ काउडर भी हो, तुम थान ऑफ ग्लैमिस भी हो. जैसा कि विचेस ने प्रॉमिस किया था, जैसे कि वेयर सिस्टर्स ने प्रॉमिस किया था, तुम्हें सब कुछ मिल चुका है. तुम्हारी तीनों प्रोफेसीज कंप्लीट हो चुकी हैं. पर फिर भी मुझे कहीं ना कहीं डर लगता है कि कहीं तुमने मैकबेथ, कहीं तुमने इन सबको पाने के लिए, इन सबको लेने के लिए कोई गलत काम तो नहीं किया है. दाउ प्लेडेस्ट मोस्ट फाउली फॉर इट. मतलब मुझे शक है कि तुमने इन सारी चीज़ों को, इन सारी पावर्स को पाने के लिए, इन सारी पावर्स को लेने के लिए तुमने कोई बहुत बड़ा फाउली, मतलब तुमने कोई बहुत बड़ा खेल खेला है. आई सस्पेक्ट, आई फियर मीन्स आई सस्पेक्ट. मुझे शक है, मुझे सस्पिशन है कि तुमने इन टाइटल्स को पाने के लिए कुछ बहुत बड़ा खेल खेला है. ओके, देन येट इट वॉज सेड इट शुड नॉट स्टैंड इन दाई पोस्टेरिटी. पर फिर भी तुम कितना भी खेल खेल लो. विचेस की प्रोफेसी याद है? विचेस ने क्या कहा था कि तुम तो किंग बन जाओगे, बट ये किंगशिप का टाइटल, जो कि एक हायरार्की से चलता है, लाइक मोनार्की सिस्टम होता है कि फादर के बाद सन बनेगा, सन के बाद उसका सन बनेगा, इस तरीके से आपने सुना होगा, राइट? तो यहाँ पे बैंक्यू क्या कह रहे हैं, पर ये जो टाइटल है किंग का, ये तुम तक ही रहेगा. ये तुम्हारे डिसेंडेंट्स, तुम्हारे बच्चों पर नहीं जाएगा. मतलब ऐसा नहीं होगा कि तुम आज किंग हो तो तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा किंग होगा. नहीं, वो मुझ पर जाएगा. आफ्टर यू माई सन फ्लेंस विल बी द फ्यूचर किंग. है ना? इसका मतलब है इट शुड नॉट स्टैंड इन दाई पोस्टेरिटी. मतलब ये तुम्हारे पास नहीं रहेगा. पोस्टेरिटी का मतलब होता है जनरेशन. ओके, मतलब ये जो टाइटल है ये तुम्हारी जनरेशन बाई जनरेशन नहीं चलेगा. बट दैट माई सेल्फ शुड बी द रूट एंड फादर ऑफ मेनी किंग्स. रेदर देन यू, तुम्हारे बजाय मैं बैंक्यू सारे किंग्स का फादर होऊंगा. मतलब ये जो टाइटल है ये मेरे बच्चों में चलेगा. ओके, तुम्हारे बाद मेरे बच्चों में चलेगा, जैसे कि उन विचेस ने कहा था. समझ आ रही है? मेरे डिसेंडेंट्स जो हैं वो फ्यूचर किंग्स होंगे तुम्हारे बजाय. ओके, जैसा कि हमने किंग को देखा है, जैसे किंग बनते हैं तो फादर के बाद फादर का सन ही किंग बनता है. यही होता है ना? ऐसा तो नहीं कोई भी बन जाता है, नहीं. फादर के बाद फादर का सन ही किंग बनता है, राइट? तभी उस सन के बाद उसका सन किंग बनता है. इस तरीके से मतलब जनरेशन चलती हैं, जनरेशन बाई जनरेशन. कहते नहीं राजघराने से हैं. क्यों कहते हैं राजघराने से? मतलब हम उस जनरेशन से आए हैं, राइट? तो यहाँ पर यही मैकबेथ कह रहा है कि भले ही किंग तुम हो, पर फ्यूचर किंग तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा नहीं, मेरा बेटा फ्लेंस बनेगा. समझ आ रही है बैंक्यू तो मैकबेथ तुम्हें? ओके, जो किंग का रेस्ट टाइटल है वो मेरे बच्चों में गिरेगा, मेरे बच्चे फ्यूचर किंग्स बनेंगे. ओके, मैं बहुत सारे बच्चों का फादर कहलाया जाऊँगा. ओके, बट दैट माई सेल्फ शुड बी द रूट एंड फादर ऑफ मैनी किंग्स. मतलब मेरे डिसेंडेंट्स, मेरे बच्चे, मेरी पीढ़ियाँ, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं, मेरी जनरेशन आप कह सकते हैं, वो फ्यूचर किंग्स बनेंगे. इफ देयर कम ट्रुथ फ्रॉम दैम एज अपॉन दी मैकबेथ देयर स्पीचेस शाइन. नाउ अगर विचेस ने
जो तुम्हारे लिए कहा है, यहाँ पर मैकबेथ, यहाँ पर बैंक्यू ये कहता है कि अगर विचेस ने जो तुम्हारे लिए कहा है और वो सच भी हुआ है तो से मतलब सीधी सी बात है वो मेरे लिए भी सच होगा। जो विचेस तुम्हारे लिए सच कह सकती हैं वो उन्होंने मेरे लिए भी सच कहा होगा, वही सच मुझे मतलब बोला है। राइट गाइस? ओके, यहाँ पर ये कहता है इफ़ दे कम ट्रुथ फ्रॉम देम as upon thee, Macbeth, their speeches shine. Why by the verities on thee made good? May they not be my oracles as well, and set me up in hope. मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर जो तुम्हारे लिए बैंक्यू कह रहा है कि जो तुम्हारे लिए विचेस ने कहा है वो सब सच हुआ है, तो सीधी सी बात है जो मेरे लिए विचेस ने कहा है, जो मेरे लिए मतलब प्रेडिक्ट किया है मेरा फ्यूचर, वो भी सच होगा। मींस अगर तुम्हें कहा है कि थैन ऑफ काउडर बनोगे, थैन ऑफ ग्लैम्स बनोगे, किंग बनोगे, तो वो सारी चीज़ें सच हो रही हैं। तो सीधी सी बात है मेरे लिए जो उन्होंने प्रोफेसाइड किया है, मेरे लिए जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया है वो भी सच होगा ही होगा। मतलब मेरा बेटा जो है वो किंग बनेगा। ठीक है? सो यहाँ पे ऑरिकल का मतलब होता है जो विचेस की, ऑरिकल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसका मतलब है जो विचेस की आप कह सकते हैं प्रेडिक्शन है, ओके, हमारे लिए, ओके, जो विचेस की प्रेडिक्शन है, ओके, वो सच हुई है। तो सीधी सी बात है मेरे लिए भी, मुझे भी एक होप करनी चाहिए, मुझे भी एक आशा करनी चाहिए कि वो मेरे लिए भी सच होगी। बट हश नो मोर, पर अभी मुझे शांत रहना होगा। बैंक्यू कहता है अभी मुझे शांत रहना होगा, अभी मुझे ज़्यादा नहीं बोलना। समझ आया? अभी मुझे शांत होना होगा, अभी मुझे ज़्यादा नहीं बोलना है। किस तरीके से? राइट? इतनी चीज़ समझ आई आपको? बैंक्यू की स्पीच काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे बैंक्यू क्या कहता है कि तुम मतलब जो विचेस ने प्रेडिक्ट किया था वो सब तुम बन चुके हो। तो सीधी सी बात है जो मुझे प्रेडिक्ट किया होगा वो मैं बनूंगा। जैसे कि मेरे बेटे को उन्होंने कहा था, विचेस ने कहा था कि मेरा बेटा फ्यूचर किंग होगा तुम्हारे बाद, है ना? तो ऑब्वियसली वो फ्यूचर किंग होगा, क्योंकि जो प्रेडिक्शन तुम्हारे लिए की गई हैं वो सच हो रही है। तो जो प्रेडिक्शन मेरे बेटे के लिए की जा रही होंगी वो भी सच होंगी एक ना एक दिन। पर चुप रहो, मुझे अभी कुछ नहीं बोलना है। ओके, बट हश नो मोर, मुझे अभी कुछ नहीं बोलना है। वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं आपके। बैंक्यू की बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है, इसलिए मैंने इतना वक्त लगाया है, ओके, हर एक शब्द को समझाने में। समझ आ रही है बात? So now Senate sounded. Enter Macbeth as king, Lady as queen, Lennox, Ross, lords and attendants. Now अब यहाँ पे सेनेट का मतलब है ट्रम्प, जो हमारा बाजे वगैरह बजते हैं ना, ट्रम्पेट कॉल होती है, मतलब एक सिंगल कॉल होती है ट्रम्पेट पे, जो बाजा होता है उसकी सिंगल तरीके से बजाया जाता है, मतलब कंटिन्यूसली नहीं बजाया जा रहा है, सिंगल तरीके से बजाया जा रहा है, एक बार बजा के छोड़ दिया। ओके, तो सिंगल तरीके से साउंड हो रहा है, जहाँ पर मैकबेथ एज अ किंग एंटर करता है और लेडी मैकबेथ एज अ क्वीन एंटर करती है। किसके साथ? लेनॉक्स, रॉस और अदर लॉर्ड्स एंड अटेंडेंट्स के साथ। ओके, ये सारे लोग हैं। अब मैकबेथ क्या कहता है? Here's our chief guest. यहाँ पर सबसे मेन, ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेस्ट बैंक्यू। ये बैंक्यू के लिए कह रहा है मैकबेथ कि हमारे आज तक के सबसे इम्पॉर्टेंट गेस्ट हैं ये बैंक्यू। राइट? देन लेडी मैकबेथ सेज, इफ ही हैड बीन फॉरगेटन, इट हैड बीन एज अ गैप इन आवर ग्रेट फीस्ट एंड ऑल थिंग्स अनबिकमिंग। अब लेडी मैकबेथ बहुत ही फाउली तरीके से, बहुत ही क्लेवर तरीके से कहती है कि अगर हम आज बैंक्यू को भूल जाते अपनी दावत में, मतलब क्योंकि ये लोग किंग और क्वीन बने हैं तो ऑब्वियसली दे विल बी अ ग्रेट फीस्ट, एक बहुत बड़ी दावत होगी इनके यहाँ पर, है ना? तो लेडी मैकबेथ कहती है अगर हम बैंक्यू को भूल जाते तो हमारी फीस्ट जो है वो बहुत गलत हो जाती, इनकम्प्लीट हो जाती।
ओके अगर हम बैंकियों को इनवाइट करना भूल जाते तो ये बहुत बुरा होता हमारे साथ, क्योंकि हमारी जो फीस्ट है, हमारी जो दावत है, वो बिल्कुल अनबिकमिंग मतलब इनकम्प्लीट हो जाती, बिल्कुल बेकार हो जाती। ठीक है, ही यहाँ पर बैंकियों के लिए यूज़ किया गया है। ओके, ही इज़ यूज्ड फॉर बैंकियों। तो लेडी मैकबेथ कहती है अगर हम बैंकियों को बुलाना भूल जाते तो हमारी फीस्ट जो है, हमारी दावत जो है, वो बिल्कुल बेकार हो जाती। राइट, देन मैकबेथ सेज टुनाइट वी होल्ड अ सोलमन सपर सर एंड आई रिक्वेस्ट योर प्रेजेंस। अब मैकबेथ कहता है बहुत ही क्लेवर तरीके से, मतलब आपने पहले से ही देखा है कि इन दोनों मैकबेथ और लेडी मैकबेथ की बातें जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं, बटरी होती हैं, बहुत ही बटरी होती हैं। तो यहाँ पर मैकबेथ कहता है कि आज हमारे यहाँ पर दावत है सर, बैंकियों से कह रहा है कि टुडे वी हैव अ सोलमन सपर। सोलमन सपर मतलब एक सेरेमनियल फीस्ट है, मतलब जो जश्न है उसकी दावत है आज, क्योंकि ये लोग किंग और क्वीन बने हैं तो उसके लिए वो दावत कर रहे हैं। तो सोलमन का मतलब है एक जश्न की दावत है। ओके, तो मैकबेथ कहता है कि आज हमारे यहाँ जश्न की दावत है सर। ओके, और मुझे आपकी प्रेजेंस, मतलब मुझे आप चाहिए, मुझे अपनी टेबल पर आप चाहिए, प्लीज़ आप मेरी दावत को अटेंड करने ज़रूर आइएगा। अब यहाँ पर मैकबेथ दावत के लिए थोड़ी बुला रहा है बैंकियों को, मारने के लिए बुला रहा है, जिससे कि वो आए उससे पहले ही, मतलब जब वो हमारे इन्वेनेस में घुसे उससे पहले ही उसका काम तमाम कर दें। But now here Macbeth will see the ghost of Banquo. Now here this scene is very interesting. Okay, so let's see what happened next. पहले इतना बताइए, ये समझ आया बैंक्यो और बैंक्यो की स्पीच काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट बैंक्यो सेज let your highness command upon me to the which my duties are with a most indissoluble tie forever knit. Now here Banquo says कि let your highness command upon me, मतलब जो भी मेरी हाइनेस का मतलब है बैंक्यो से, मैकबेथ से, सॉरी, जो भी मेरे किंग, जो भी मेरे मैकबेथ कमांड करेंगे, जो भी मेरे किंग कमांड करेंगे, ओके, वो मेरा कर्तव्य होगा, वो मेरी ड्यूटी होगी उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए। ओके, जो भी मेरी हाइनेस कमांड करेंगे मैं वही करूँगा। ओके, मैं वही करूँगा। To the which my duties are with a most indissoluble tie forever knit. और जो मेरी ड्यूटीज़ हैं आपके लिए मैकबेथ, मतलब जो मेरी किंग के लिए ड्यूटीज़ हैं वो हमेशा से ही बहुत इनडिसोल्युबल का मतलब कभी नहीं ब्रेक हो सकती। वो जो ड्यूटीज़ मैं निभाता हूँ आपके लिए वो कभी ब्रेक नहीं हो सकती। ओके, वो एक परमानेंट टाई से, एक परमानेंट बंधी हुई हैं विद ओबीडियंस। ओके, एक ओबीडियंस से बंधी हुई हैं। मतलब यहाँ पे बैंक्यो कहता है कि जो भी आप कमांड करें, जो भी आप मुझे मतलब काम दें, जो भी आप मुझे कमांड करें बेसिकली, है ना, मेरा वो कर्तव्य है उसे पूरा करना। मैं बंध जाता हूँ उस चीज़ से, जो भी आप कहते हैं। ओके, नेक्स्ट मैकबेथ सेज राइट यू दिस आफ्टरनून। मतलब अब मैकबेथ पूछता है, क्योंकि बैंक्यो को जाना होता है, तो मैकबेथ पूछता है कि क्या आज दोपहर तुम जाओगे, क्या आज दोपहर तुम जाओगे राइट पर, मतलब आज क्या तुमने आज दोपहर जाने का प्लान किया है राइट पर। देन बैंक्यो सेज आई माई गुड लॉर्ड, यस माई गुड लॉर्ड, मैं आज दोपहर को ही राइटिंग पे जाऊँगा, मैं आज दोपहर को ही राइट करने जाऊँगा। देन मैकबेथ सेज वी शुड हैव else desired your good advice, which still hath been both grave and prosperous in this day's council, but will take tomorrow, isn't far you right? Now Macbeth says कि अगर तुम होते, we should have else desired your good advice, मतलब हमें तुम्हारी डिज़ायर, मतलब हमें तुम्हारी एडवाइस की ज़रूरत है। जो आज हम कुछ काउंसिल रखने वाले हैं,
ओके, कोई सीरियस मैटर डिस्कस करने वाले हैं, उसमें तुम्हारी एडवाइस काफ़ी ज़रूरी है बैंक्यो। ओके, तो क्या तुम आज दोपहर तक आ जाओगे? ओके, क्या तुम आज दोपहर तक आ जाओगे? ये कहता है मैकबेथ। ओके, मैकबेथ कहता है वी शुड हैव एल्स डिजायर्ड योर गुड एडवाइस विच स्टिल हैड बीन बोथ ग्रेव एंड प्रॉस्पेरस। मतलब हमें तुम्हारी आज जो काउंसिल होगी, मतलब ऑब्वियसली जब किंग्स होते हैं तो जो स्टेट होता है उसके डिफरेंट मैटर्स को लाया जाता है रोज़, है ना। तो मैकबेथ कहता है कि हमें जो मतलब आज काउंसिलिंग होगी, जो मैटर्स आएंगे आज, जो परेशानियां आएंगी आज, है ना, जो कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे आज, उनमें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है बैंक्यो, क्योंकि यू आर वेरी क्योंकि तुम्हारी जो एडवाइसेस होती हैं बैंक्यो वो बहुत हेल्पफुल होती हैं हमारे लिए। जो हम मैटर डिस्कस करते हैं अपने स्टेट का, उस स्टेट के लिए, स्कॉटलैंड के लिए तुम्हारी एडवाइसेस बहुत हेल्पफुल होती हैं। ओके, तो अगर तुम आज नहीं आ सकते, है ना, अगर तुम आज नहीं आ सकते तो हम कल इस मीटिंग को शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, हम कल तक वेट कर सकते हैं तुम्हारे लिए। कल हम डिस्कस करेंगे अपने काउंसिल के मैटर को, अपने स्टेट के मैटर को बेसिकली। ओके, तो जब तक तुम नहीं आ जाते अपने राइटिंग से, तब तक हम वेट करेंगे, ठीक है। सो बट विल टेक टुमारो इज़न्ट फार यू राइट, मतलब हम कल तक वेट करेंगे। क्या तुम थोड़ा दूर जा रहे हो? क्या तुम राइटिंग करने थोड़ा दूर जा रहे हो? मैकबेथ पूछता है। देन बैंक्यो सेज एज फार माई लॉर्ड एज विल फिल अप द टाइम it wished this and supper go not my horse the better I must become a borrower of the night for a dark hour or twain. Now he says, now बैंक्यो says कि मैं इतनी दूर जा रहा हूँ कि मैं डिनर तक ही वहाँ पहुँच पाऊँगा। ओके, अभी अगर मैं चलूँगा तो मैं डिनर तक वहाँ पहुँच पाऊँगा। ओके, एज फार माई लॉर्ड एज विल फिल अप द टाइम ट्विस्ट दिस एंड सपर, मतलब मैं इतनी दूर जा रहा हूँ कि अगर मैं अभी से चलूँगा, ओके, अगर मैं अभी से अपना टाइम फिल करूँगा, अपना टाइम फिल करने का मतलब मैं अभी से अगर अपनी ट्रैवल को, अपनी आप कह सकते हैं यात्रा को अगर शुरू करूँगा, तो मैं सपर मतलब डिनर तक पहुँच जाऊँगा। ओके, मैं डिनर तक पहुँच जाऊँगा। एंड गो नॉट माई हॉर्स द बेटर आई मस्ट बिकम अ बोरर ऑफ द नाइट फॉर अ डार्क आवर और टू इन। और ये भी हो सकता है अगर मेरे जो हॉर्सेस हैं वो ज़्यादा दूर ना चल पाएँ। ओके, ज़्यादा दूर नहीं, ऑब्वियसली हम इतनी दूर जा रहे हैं कि हॉर्सेस भी थक जाएंगे, है ना, घोड़े भी थक जाएंगे, तो उन्हें भी बैठने के लिए थोड़ा आराम चाहिए होगा, उन्हें भी मतलब थोड़ी देर आराम चाहिए होगा। तो मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, नाइट से थोड़ा सा टाइम और बोरो कर लूँगा। आई मस्ट बिकम अ बोरोर ऑफ द नाइट फॉर अ डार्क आवर और टू इन, मतलब कहना चाह रहा है कि अगर मेरे हॉर्सेस थक जाते हैं, ओके, अगर मेरी हॉर्सेस थक जाते हैं तो मैं नाइट से, इस डार्क नाइट से थोड़ा टाइम बोरो कर लूँगा, मतलब मैं थोड़ा टाइम और ले लूँगा जिससे कि मेरे घोड़े आराम कर सकें और हम रात तक मतलब उधर पहुँच सकें जहाँ हमें जाना है। समझ आ रहा है? ओके गाइस, नाउ बैंक्यो सेज, नाउ मैकबेथ सेज फेल नॉट आवर फीस्ट, प्लीज़ हमारी फीस्ट फेल मत करना, मतलब फीस्ट होने से पहले, दावत होने से पहले लौटाना प्लीज़। हम नहीं चाहते कि तुम हमारी दावत छोड़ दो, हमारी दावत को छोड़ दो। देन बैंक्यो सेज माई लॉर्ड आई विल नॉट, नहीं, मैं नहीं फेल करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मतलब मैं पूरी कोशिश करूँगा दावत के समय तक आने की। ओके, देन मैकबेथ सेज we here our bloody cousins are bestowed in England and in Ireland, not confessing their cruel parricide, filling their hearers with strange invitation. Now Macbeth says कि मैंने सुना है कि जो ब्लडी कज़िन्स यहाँ पर डंकन के बेटे से मतलब है, डंकन के जो बेटे हैं दोनों, कौन था आपका, डंकन के बेटे जो थे आपके, क्या नाम था भूल गया, मैल्कॉम और डेनॉल्बिन, है ना,
तो मैकबेथ कहता है कि मैंने सुना है कि जो ब्लडी कजिन्स यहाँ पे क्यों कह रहा है? ब्लडी कजिन्स का मतलब है सन ऑफ डंकन से। ओके, तो मैकबेथ कहता है कि मैंने सुना है कि जो डंकन के बेटे हैं मैल्कॉम एंड डोनाल्ड बेन, वो दोनों इंग्लैंड और आयरलैंड में मिल चुके हैं। ओके, वो दोनों कहाँ मिल चुके हैं? दे आर बिस्टोर्ड। ओके, दे आर बिस्टोर्ड मीन्स वो मिल चुके हैं, दे आर फाउंड। ओके, कहाँ पर? इन इंग्लैंड एंड इन आयरलैंड, नॉट कन्फेसिंग दे क्रूअल पैरासाइट, मतलब बट वो मिल तो चुके हैं पर वो ये कन्फेस नहीं कर रहे कि उन्होंने अपने फादर को, पैरासाइट मतलब द मर्डर ऑफ फादर। ओके, द मर्डर ऑफ फादर, तो वो मिल तो चुके हैं इंग्लैंड और आयरलैंड में, पर ये कन्फेस नहीं कर रहे हैं, ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने अपने ही पिता डंकन को क्यों मारा। ओके, फिलिंग देयर हेयर्स विद स्ट्रेंज इन्विटेशन, एंड उनके जो लाइक यू कुड से filling their hearers with strange invitation, मतलब rather than speaking, rather than revealing कि उन्होंने अपने पिता को क्यों मारा, वो स्ट्रेंज बातें बनाए पड़े हैं, स्ट्रेंज आप कह सकते हैं बहाने बनाए पड़े हैं, एक्सक्यूजेस बना रहे हैं, स्ट्रेंज है ना, अलग अलग एक्सक्यूजेस बना रहे हैं। बट ऑफ दैट टुमारो व्हेन they withal we shall have cause of state craving us jointly, but अब मैकबेथ कहता है कि बट जो हमारा मैटर है स्टेट का, ओके, जो स्टेट का मैटर है अभी हमारे लिए वो डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है। पहले हम अपने स्टेट के मैटर को डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं हमारी स्टेट में, वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इनके बारे में सोचेंगे। अभी हमारे लिए जो स्टेट का मैटर है वो करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, देन hire you to horse, adieu. Now he said, go fast with your horse, hurry. जाओ अपने हॉर्सेस के साथ। मैकबेथ कहता है बैंक्यू से कि जाओ अपने हॉर्सेस के साथ, तुम्हें देर हो रही होगी। adieu means bye, goodbye. till you return at night, goes flames with you. Now अब मैकबेथ कहता है कि प्लीज़ तुम रात तक लौट आना। ओके, मुझे तुम रात को दिखने चाहिए, तुम रात तक लौट आना। क्या फ्लेंस भी तुम्हारे साथ जा रहा है? अब वो पूछता है, देखो यहाँ पे गोस फ्लेंस विद यू, मतलब क्या फ्लेंस भी तुम्हारे साथ जा रहा है? वो कंफर्म कर रहा है कि बैंक्यू जो है वो अकेले जा रहा है, फ्लेंस के साथ जा रहा है, क्योंकि उसका रियल पर्सन कौन है, रियल एनिमी कौन है अभी इस टाइम पे? फ्लेंस। तो अभी मैकबेथ जो है वो क्यों पूछ रहा है कि क्या फ्लेंस भी तो ऐसा जा रहा है? वो इसलिए ये पूछ रहा है क्योंकि वो फ्लेंस को उड़ाना चाहता है। उड़ाने का मतलब फ्लेंस को मारना चाहता है। ओके, वो इसलिए पूछ रहा है जिससे कि वो अपने दो मर्डरर्स को भेज सके उनके पीछे और उन दोनों को मरवा सके। पर जैसे कि मैंने पहले कहा, बैंक्यू मर जाता है बट फ्लेंस बच जाता है। समझ आ रही है? देन बैंक्यू सेज, आई माई लॉर्ड, good Lord, our times does call upon. Yes, my Lord. Yes. अब बैंक्यू कहता है, I my good Lord, our times does call upon. Now बैंक्यू says कि yes, my Lord, वो भी मेरे साथ जा रहा है, फ्लेंस भी मेरे साथ जा रहा है, पर our time does call upon का मतलब है कि अब मैं चलता हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। गुड बाय। ओके, अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आई हैव द लेस टाइम, सो आई हैव टू गो फास्ट। देन आई होप दिस थिंग इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। ओके, दी स्पीचेज आर रियली इंपॉर्टेंट, आपको इन स्पीचेस को बहुत ध्यान से समझना होगा, एंड नाउ यू हैव टू रिवाइज इट वेरी नाइसली। नाउ मैकबेथ सेज, अब मैकबेथ कहता है, आई विश योर हॉर्सेस स्विफ्ट एंड स्वेयर ऑफ फूड, एंड सो आई डू command you to their back, farewell. Now अब मैकबेथ कहते हैं कि काश तुम्हारे जो हॉर्सेस हैं वो बहुत फास्ट भाग सके, मतलब जितना हो सकता है उतनी तेज़ भाग सके। ओके, इस अनइक्वल अर्थ पर। ओके, श्योर ऑफ फूड का मतलब है इट्स अनइक्वल अर्थ पर वो बहुत तेज़ी से, स्विफ्ट मतलब बहुत तेज़ी से और जर्नी कर पाए अपनी। मैकबेथ कहते हैं कि
काश तुम्हारे जो हॉर्सेस हैं वो बहुत तेज़ी से और बहुत श्योर फुटेड मतलब इस अनइक्वल अर्थ पर, ऑब्वियसली जो अर्थ है हमारी वो अनइक्वल है, तो मैकबेथ कहते हैं कि इस अनइक्वल ज़मीन पर तुम्हारे हॉर्सेस जो है वो बहुत तेज और सेफली भाग सके। एंड सो आई डू कमांड यू टू देयर बैक्स फेयरवेल। एंड इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ और लोग तुम्हारे पीछे भेज रहा हूँ। ओके, फेयरवेल, गुड बाय। मैकबेथ कहता है कि काश जो तुम्हारे हॉर्सेस हैं वो बहुत केयरफुल्ली जाएं और बहुत तेज़ी से जाएं। ओके, और इसलिए मैं कुछ लोग तुम्हारे पीछे भेज रहा हूँ। ओके, तुम्हारे पीछे कुछ लोग मैं भेज रहा हूँ जिससे कि तुम्हारी जर्नी जो है वो सेफ हो सके, तुम्हें कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए तुम्हारी जर्नी में। सॉरी गाइस, फेयरवेल मीन्स गुड बाय, टेक केयर। नाउ मैकबेथ कितना क्लेवर है, यहाँ पे उसने क्या एक्सक्यूज़ दिया, ध्यान से समझेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसने ये एक्सक्यूज़ दिया, मैं तुम्हारे पीछे कुछ लोग और भेज रहा हूँ जिससे कि तुम्हारी जर्नी में कोई परेशानी नहीं आए। ओके, तुम्हारी जर्नी में कोई परेशानी नहीं आए। बट वो लोग और कौन थे? दे वर द मर्डरर्स हु इज़ गोइंग टू किल बैंक्यो एंड फ्लेम्स। ओके, नाउ बैंक्यो चला जाता है, एग्जिट बैंक्यो। नाउ अब मैकबेथ कहता है, Macbeth says, let every man be master of his time till 7 at night. अब मैकबेथ कहता है कि नाउ जो भी काम तुम्हें करना है, लेट एवरी मैन बी मास्टर ऑफ हिज टाइम, मतलब जो भी तुम्हें काम करना है वो तुम्हें 7 बजे तक ही करना होगा, टिल 7 at night। मतलब जो भी तुम्हें काम करना है बैंकियो, जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट काम करना है वो 7 बजे तक करना है, क्योंकि 7 बजे के बाद 7 बजे से हमारी जो दावत है वो स्टार्ट हो जाएगी और मुझे तुम चाहिए मेरी दावत में। ओके, मुझे तुम मेरी दावत में चाहिए, इसलिए जो भी तुम्हारा काम हो, जो भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट काम हो वो अपना 7 बजे तक ही निपटा लेना। और फिर उसके बाद टू मेक सोसाइटी, ओके, टू मेक society the sweeter welcome, we will keep ourselves till supper time alone, while then God be with you. Now Macbeth says कि जब तक 7 बजे तब तक तुम अपना सारा काम निपटा लेना रात तक, और तब तक मैं मतलब अपने डिनर को एंजॉय करता हूँ अकेले। ओके, मैं अपने डिनर को एंजॉय करता हूँ अकेले। 7 बजे तक तुम अपना जितना भी काम हो वो निपटा लेना, तब तक मैं अपना डिनर एंजॉय करता हूँ अकेले। ओके, गॉड बी विद यू, मतलब भगवान तुम्हारे साथ रहें, गॉड तुम्हें ब्लेस करें, है ना। देन एक्सुएंट लॉर्ड्स एंड ऑल बट मैकबेथ एंड अ सर्वेंट, मतलब सारे जो लॉर्ड्स वगैरह हैं वो सब चले जाते हैं। अब कौन बचता है? सिर्फ अटेंडेंट्स बचते हैं। ओके, जितने भी लॉर्ड्स हैं वो सब चले जाते हैं, मैकबेथ और एक सर्वेंट, 2 लोग बचते हैं बस। नाउ सर्वेंट सेज, मैकबेथ सेज, राइट, मैकबेथ सेज, सिरा अ वर्ड विद यू, अटेंड दोज मेन आर प्लेजर। नाउ सिरा का मतलब यहाँ पर सर से है। ओके, सिरा यहाँ पर उन लोगों को कहा गया है। ओके, सिरा उन लोग को कहा गया है जो लोअर रैंक्स के हैं, जैसे कि अभी तक हम लोग नहीं देखते आए हैं हाई रैंक्स, जैसे कि लॉर्ड्स हो गए, थैन्स हो गए, है ना। अटेंडेंट्स जितने भी थे, थैन ऑफ काउंटर, मतलब जो हमारे जितने भी लॉर्ड्स होते थे, थैन्स होते थे, है ना, वो सब कौन होते थे? हमारे अपर क्लास के होते थे, मतलब एक हायर अथॉरिटी होती थी। बट यहाँ पे सिरा का मतलब कौन है? जो लोअर रैंकर्स होते हैं, जो लो रैंक के पीपल होते हैं, उन्हें यहाँ पे सिरा कहा गया है। तो सिरा अ वर्ड विद यू, अटेंड दोज मेन आर प्लेजर। मैकबेथ सेज, सिरा अ वर्ड विद यू, क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? कैन आई टॉक टू यू फॉर फ्यू टाइम? अटेंड दोज मेन आर प्लेजर, मतलब क्या वो लोग जो मेरा वेट कर रहे हैं बाहर, वो बाहर हैं? क्या वो लोग बाहर हैं जो मेरा वेट कर रहे हैं? ओके, देन अटेंडेंट सेज, ओके, देन अटेंडेंट मीन्स जो सर्वेंट है वो कहता है, दे आर माई लॉर्ड विदाउट द पैलेस गेट,
हाँ वो लोग बाहर हैं, दे आर आउटसाइड माई लॉर्ड इन द पैलेस गेट, मतलब वो लोग पैलेस गेट जो इन्वेनेस है, सॉरी जो पैलेस है उसके बाहर हैं। ओके, जो पैलेस है उसके बाहर वो लोग आपका वेट कर रहे हैं। ओके, देन मैकबेथ सेज ब्रिंग दैम बिफोर अस, मतलब उन्हें मेरे पास लेकर आओ। ब्रिंग दैम बिफोर अस, ब्रिंग दैम टू मी। नाउ जो सर्वेंट है वो चला जाता है और मैकबेथ कहता है टू बी दस इज नथिंग, टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस। आवर fears in Banquo stick deep and his royalty of nature reigns that which would be feared. It is much he desires. Now अब वो जो सर्वेंट है वो चला जाता है। अब वो कुछ लोग जो बाहर वेट कर रहे थे उनसे बातें करता है, जो कि कौन होते हैं? मर्डरर्स होते हैं। ओके, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे जो मैकबेथ है वो सर्वेंट से बात नहीं कर रहा है, वो मर्डरर्स से बात कर रहा है। मर्डरर्स जो मर्डर करने वाले हैं बैंक्यो का। ओके, तो मैकबेथ क्या कहता है कि मुझे लगता है टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस, मतलब मेरी जो पोजीशन है, अगर किंग होते हुए भी मेरी पोजीशन सेफ नहीं है तो किंग होना वेस्ट है। ओके, क्या कहता है? अगर किंग होते हुए भी मेरी पोजीशन सेफ नहीं है, आई एम नॉट सेफ बीइंग अ किंग, सो आई एम अ बेस्टेज ऑफ किंग, मतलब मैं बेस्ड हूँ बिल्कुल किंग के नाम पर। Our fears in Banquo stick deep and his royalty of nature reigns that which would he feared, this much he desires. मुझे सिर्फ एक लोग से डर लगता है जो कि कौन है? बैंक्यो। मुझे सिर्फ बैंक्यो से डर लगता है। क्यों? क्योंकि उसके खून में स्टिक डीप, मतलब उसके खून में जो रॉयल्टी है वो उसके नेचर में, उसके ब्लड में बहुत अच्छी तरीके से डिजॉल्व है। ओके, रेंज दैट विच वुड बी फियर्ड, दिस मच ही डेयर्स। नाउ ही सेड कि ही इज़ अ रिस्क टेकर, दिस मच ही डेयर्स, मतलब वो कुछ भी कर सकता है अपनी रॉयल्टी के लिए, मतलब उसके अंदर इतनी, उसके नेचर में इतनी रॉयल्टी भरी हुई है कि वो कुछ भी कर सकता है, कुछ कैसा भी रिस्क ले सकता है। ओके, इट इज़ मच ही डेयर्स, मतलब वो कैसा भी रिस्क ले सकता है। ही इज़ अ रिस्क टेकर एंड टू दैट डाउटलेस टेम्पर ऑफ हिज माइंड he had a wisdom that doth guide his valor to act in safely and he is a fearless courage, मतलब उसके पास fearless courage है, उसके पास बहुत सारा courage है। ओके, और उसके पास wisdom भी है। ओके, he is having the fearless courage and to the dauntless का मतलब होता है fearless disposition, उसके पास fearless disposition है, टेम्पर है उस, मतलब ही इज़ हैविंग द गुड अमाउंट ऑफ टेम्पर ऑफ हिज माइंड एंड हैज अ विजडम दैट डॉट गाइड हिज वैलर टू एक्ट इट सेफली। नाउ हियर मैकबेथ सेज कि ही इज़ हैविंग द fearless courage, उसके पास मतलब वो बहुत करेजियस है, बहुत ज़्यादा ब्रेव है। ओके, वो बहुत ब्रेव है। ओके, और वो अपने विजडम मतलब अपने माइंड को बहुत सेफली यूज़ करता है, बहुत केयरफुली और बहुत सेफली यूज़ करता है। ओके, बहुत सेफली यूज़ करता है, बहुत केयरफुली यूज़ करता है वो अपने माइंड को। ही हैज़ अ विजडम दैट डॉट गाइड हिज वैलर टू एक्ट इन सेफली, मतलब उसके पास जो विजडम है, उसके पास जो ताकत है, वो अपने माइंड को बहुत सेफली, बहुत प्रोटेक्टली आप यूज़ करता है। This none but he, whose being I do fear, and under him my genius is rebuked. मतलब उससे छोड़कर ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मुझे डर लगता है। सिर्फ बैंक्यो एक ऐसा है जिससे मुझे डर लगता है। ओके, सिर्फ एक बैंक्यो ही ऐसा है जिससे मुझे डर लगता है। ओके, और उसके सामने, बैंक्यो के सामने तो मेरे जो आप कह सकते हैं एंजल्स हैं, सॉरी, मेरे जो एंजल्स हैं वो भी डर जाते हैं। माई जीनियस मतलब मेरे जो एंजल्स हैं,
एंजल्स यहाँ पे है, मेरी जो जनरेशन पास्ट जनरेशन है वो भी बैंकियों से बहुत डर जाती है। ओके, तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं मैकबेथ कि सिर्फ मुझे किसी से डर नहीं लगता, पर सिर्फ बैंकियों एक ऐसा है जिससे मुझे डर लगता है। ओके, और बैंकियों के सामने तो मेरे जो हियर ही हैज़ यूज जीनियस। ओके, जीनियस का मतलब मेरी जो पास्ट जनरेशन है, जो मेरे पितृ, आप जैसे हिंदी में आप लोग अगर जानते होंगे, जो मेरे मरे हुए लोग होते हैं उन्हें कहा गया है यहाँ पर। क्योंकि जो मेरी पास्ट जनरेशन है जो मर चुकी है, इवन वो तक बैंकियों से बहुत ज़्यादा डरती है। एंड इट इज सेड, रिब्यूक का मतलब होता है डरना। ओके, द मीनिंग ऑफ रिब्यूक मीन्स बहुत फेयरफुल होना, बहुत फेयरफुल रहना। ओके, एज इट इज सेड मार्क एंटनीज वॉज बाई सीजर। जैसे कि अब यहाँ पे जूलियस सीजर का एक एक्सपेक्ट यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, जूलियस सीजर का एक्सपेक्ट क्या कहता है कि ऐसे जैसे कि जो मार्क एंटनी है, ओके, जो मार्क एंटनी की मतलब एंजल होती थी, उसकी आत्मा जो थी वो सीजर से, जो ऑक्टेवियस सीजर था उससे डरती थी, है ना। मार्क एंटनी की जो आत्मा थी वो सीजर से काफ़ी ज़्यादा डरती थी। अगर आप जूलियस सीजर पढ़ेंगे तो उसमें मार्क एंटनी की जो आत्मा है वो सीजर से बहुत डरती थी। तो सेम यहाँ पर मैकबेथ भी कह रहा है कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, पर बैंकियों से डर लगता है। ओके, बैंकियों से डर लगता है, बैंकियों के पास्ट जनरेशन से डर लगता है। जैसे कि सीजर जो था उसको मार्क एंटनी से डर लगता था और किसी से डर नहीं लगता था। सेम ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है, मुझे बैंकियों से डर लगता है, उनके पास्ट जनरेशन से डर लगता है। समझ आ रही बात? नेक्स्ट, अब जो मैकबेथ है वो क्या कहता है, जस्ट वेट। ओके, he chid the sisters when first they put the name of king upon me and bade them speak to him. Then prophet like they hailed him father to a line of kings. Upon my head they placed a fruitless crown, very important, and put a barren scepter in my grip. Thanks to be wrenched with an unlinear hand, no son of mine succeeding. Now here he says, मैकबेथ says that जब पहली बार ओके मुझे बहुत मतलब गुस्सा आया था, चिट का मतलब है मुझे बहुत गुस्सा आया था। ही चिट द सिस्टर्स, मतलब मतलब बैंकियों ने सिस्टर्स, जो बेयर सिस्टर्स हैं, जो विचेस हैं, उन्हें डांटा था। ओके, उन पर गुस्सा किया था। क्यों? क्योंकि जब पहली बार when first they put the name of king upon me and bade them speak to him, then prophet like they hailed them father to a line. मतलब मैकबेथ कहता है कि बैंकियों को पहले बहुत गुस्सा आया था जब विचेस ने पहली बार मुझे एज अ किंग मतलब अनाउंस किया था कि यू विल बी द फ्यूचर किंग, तो बैंकियों को पहले बहुत गुस्सा आया था। ओके, एंड बेड देम स्पीक टू हिम, और तभी बैंकियों ने अपने बारे में पूछने को कहा। ओके, मतलब वो इस तरीके से बातें बना रहा है कि जब बैंकियों को बहुत गुस्सा आया था, जब विचेस ने मेरे बारे में कुछ बोला था, मेरे बारे में मेरी प्रोटेक्शन की थी, तो बैंकियों को बहुत गुस्सा आया था। ओके, फिर जब बैंकियों ने अपने बारे में पूछा, ओके, अपना फ्यूचर पूछा था जब बैंकियों ने, तभी जब बैंकियों ने अपने बारे में पूछा, देन विचेस सेड they hailed him father to a line of kings. Upon my head they placed a fruitless crown and put a barren scepter in my grips. मतलब जब उन्होंने हेल किया था बैंकियों को एज द फादर ऑफ किंग, मतलब यू विल बी द फादर ऑफ द किंग्स। ओके, जब बैंकियों को उन्होंने कहा था, when he hailed बैंकियों, where it goes, they hailed them as a father to a line of kings. जब विचेस ने बैंकियों को एज अ फादर ऑफ द किंग अनाउंस किया था, ओके, तो ऐसा मुझे लग रहा था जैसे कि विचेस ने मेरे ऊपर एक फ्रूटलेस क्राउन, ओके, एक बैरन स्केप्टर मेरे ऊपर डाल दिया हो। फ्रूटलेस क्राउन कैसा?
फ्रूटलेस क्राउन ऐसा क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ खुद किंग बनना इज़ नथिंग, है ना। अगर वो किंगशिप आपके जनरेशन बाई जनरेशन चल रही है, आपके ब्लड में चल रही है वो किंगशिप, देन इट इज़ अ गुड थिंग। बट सपोज जैसे अगर मुझे एक एज अ किंग अपॉइंट कर दिया जाए, ठीक है, और मुझसे ये कह दिया जाए सिर्फ तुम ही किंग होगे, तुम्हारी जो लाइक प्रोजनी होगी, तुम्हारी जो प्रोजनी होगी या तुम्हारी जो इन लाइक फ्यूचर चाइल्ड्स होंगे, फ्यूचर डिसेंडेंट्स होंगे, वो किंग नहीं होंगे, तो दैट इज़ अ फ्रूटलेस क्राउन। उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, है ना। सिर्फ मुझे ही किंग होना, बाकी फिर मेरी जनरेशन को किंग नहीं होना, इट्स नथिंग, इट्स अ फ्रूटलेस क्राउन। तो यही मैकबेथ कह रहा है कि उन्होंने ऐसा कहकर कि यू विल बी द फ्यूचर किंग बट द डिसेंडेंट्स ऑफ बैंक्यो विल बी द फादर ऑफ द किंग, ऐसा कह के उन्होंने विचेस ने मेरे सिर पर एक यूजलेस, एक फ्रूटलेस का मतलब एक यूजलेस क्राउन पहना दिया है, एंड पुट अ बैरन स्केप्टर, ओके, एक बैरन स्केप्टर इन माई ग्रिप्स, मतलब उन्होंने मुझे एक बैरन स्केप्टर, यहाँ पे बैरन स्केप्टर का मतलब है, देखिए बैरन का मतलब होता है बंजर, स्केप्टर का मतलब होता है, स्केप्टर ये कुछ से जैसे कि राजदंड, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, जैसे कोई गलती हो जाती है किसी भी किंग से तो उसे राजदंड दिया जाता है, उसे एक पनिशमेंट दी जाती है बेसिकली, है ना। तो वही ये कहना चाह रहा है कि एक बैरन, एक सड़े हुई मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई क्राउन नहीं, एक राजदंड दे दिया हो, एक मुझे पनिशमेंट दे दी हो। ओके, समझ आ रहा है? आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। दिस इज वेरी ट्रिकी सीन, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, थैंक्स टू बी रेस्ट विद एन अंडरलाइंड हैंड, नो सन ऑफ माइंड सक्सीडिंग, एंड उन्होंने ऐसा भी कहा कि मेरी फैमिली से बाहर, समवन आउट ऑफ माई फैमिली, ओके, मेरी फैमिली से बाहर, इस मतलब मेरी जो फैमिली है, मेरी जो जनरेशन है, उससे बाहर ये जो क्राउन है वो जाएगा, मतलब ये क्राउन मेरी फैमिली के अंदर ही नहीं रहेगा, मेरी फैमिली से बाहर जाएगा, बिकॉज आई विल नॉट बी द डैड, मैं डैड नहीं बन सकता, मतलब मैं फादर नहीं बन सकता, आई विल नॉट बी अ फादर, ओके, मैं फादर नहीं बन सकता, इसलिए जो क्राउन है, ओके, जो क्राउन है वो वहाँ जाएगा। ओके, थैंक्स टू बी ए रेस्ट विद एन अंडरलाइन हैंड, नो सन ऑफ माइंड सक्सीडिंग, मतलब मेरा जो कोई बेटा है वो आगे चल के सक्सीड नहीं करेगा, ओके, अदर देन माई सन सम एल्स विल बी द फ्यूचर किंग, वो सम एल्स कौन है? बैंक्यो's सन, फ्रेंड्स। ओके, now I am erasing it all. Okay, if it be so, for Banquo's issue have I filled my mind, for them the gracious Duncan have I murdered, put ransoms in the vessel of the peace, only for them, and mine eternal jewel given to the common enemy of man, to make them king, the seed of Banquo kings, rather than so come fate into the list and champion me to the utterance. Who's there? Now here Macbeth says कि here Macbeth says कि मैंने डंकन को क्यों मारा? फॉर द बैंक्यूज सन ओनली, मतलब सिर्फ बैंक्यू के सन की वजह से, मतलब मैंने डंकन को इसलिए, डंकन को देख क्यों मारा था उसने, जैसे कि वो खुद किंग बन सके, है ना। तो वो अब अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है कि मैंने डंकन को क्यों मारा? फॉर बैंक्यूज सन ओनली, जैसे कि वो बैंक्यू का सन बेटा, जो बैंक्यू का बेटा है वो किंग बन सके, मैंने इसलिए डंकन को मारा था। ओके, मतलब क्या मैंने ये सब किंग को मारना, किंग डंकन को मारना, ये सब बैंक्यू के बेटे के लिए किया था, है ना। क्या मैंने अपना काम माइंड, जो मेरा माइंड इतना काम रहता था, उसे एनवी से, उसे गुस्से से, उसे फ्यूरी से भरा, किसके लिए? सिर्फ बैंक्यू के बेटे के लिए। ओके, ओनली फॉर देम, क्या मैंने सिर्फ अपने पीस को ख़राब किया सिर्फ बैंक्यू के बेटे के लिए? ओके, ओनली एंड माई एटर्नल ज्वेल्स, और जो मेरी जो मॉडल सोल थी, जो प्योर सोल थी, मेरी जो आत्मा थी, जो इतनी शांत रहती थी, मैंने उसे मक्कार सिर्फ बैंक्यू के बेटे के लिए बनाया। मतलब वो ओवरऑल ये कहना चाहता है कि मैंने इतना सारा कांड कर दिया, इतना सारे लोगों को मार दिया, इतना सब कुछ कर दिया, है ना,
सार्जेंट्स को मार दिया, इवन डंकन को मार दिया, ओके, बहुत सारे लोगों को मार दिया। क्या मैंने ये सब काम जो किया था ये बैंक्यो के सन के लिए, बैंक्यो के बेटे के लिए किया था कि वो किंग बन सके? क्या मैंने इसलिए किया था? राइट। नाउ गिवन टू द कॉमन एनिमी ऑफ मैन, मतलब जो मैंने आई बिकम अ सैटन, मैं एक शैतान बन गया, मैं एक शैतान में कन्वर्ट हो गया। क्या मैं शैतान में इसलिए कन्वर्ट हुआ? फ्लेंस के लिए, मतलब बैंक्यो के बेटे के लिए, जिससे कि वो किंग बन सके हैं। देन ही सेज to make them kings, the seed of Bankyo kings, rather than so come fate into the list and champion me to the utterance. Now he says that, okay, rather than to make them king and seed of Bankyo's king, मतलब मैं कॉमन एनिमी बन गया मैनकाइंड का, मतलब मैं सबका दुश्मन बन गया, मैंने सब कुछ कर दिया, इतना गलत मैंने सबके साथ किया है ना, मैं कॉमन एनिमी बन गया। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, गिवन टू द कॉमन एनिमी ऑफ मैन, मैं एक कॉमन एनिमी बन गया लोगों का। क्या मैं सिर्फ बैंक्यो के बेटे के लिए बना था? टू मेक देम किंग, द सीड ऑफ बैंक्योज किंग, रेदर देन सो कम फेट इन टू द लिस्ट एंड चैम्पियन मी टू अट्रैक्ट। नाउ ही सेज दैट इससे देखने से अच्छा तो, ओके, मतलब ये सब देखने से अच्छा तो मैं जो विचेस ने प्रोफेसी की है, जो फ्यूचर जो मेरा फेट है, बैंक्यो का फेट है, मैं उससे ही क्यों ना लड़ाई कर लूँ। मतलब कहना चाह रहा है कि शांत बैठने से अच्छा तो मैं कुछ कोशिश करके क्यों नहीं दिखाऊँ, मैं मतलब कुछ कोशिश ऐसी करूँ जिससे कि क्या पता कुछ हो सके। जैसे कि हम लोग कहते हैं, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। सपोज किसी ने आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया है ना कि आप XYZ जो भी आप बनना चाहते हैं आप वो नहीं बन सकते। जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, आप जो भी बनना चाहते हैं आप नहीं बन सकते। सपोज आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपका बहुत मन है डॉक्टर बनने का, अब कोई भी ऐसा आया, कोई भी सपोज सेज पंडित वगैरह कोई भी आए, उनने प्रेडिक्ट कर दिया कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते, तो क्या आप कोशिश करना भूल जाएंगे? क्या आप कोशिश नहीं करेंगे? ऑब्वियसली यू हैव टू ट्राई। क्या पता जो पंडित की भविष्यवाणी है, जो उनका प्रेडिक्शन है, वो गलत हो जाए आपके सामने, है ना। तो सेम यही मैकबेथ कह रहा है कि मुझे कोशिश करनी चाहिए, है ना, मुझे कोशिश करनी चाहिए, क्या पता मैं उन्हें मार सकूं। ओके, मुझे यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए। ओके, रेदर देन सिटिंग सो साइलेंटली, मुझे थोड़ी कोशिश करनी चाहिए जिससे कि मैं उन्हें मार सकूं। नाउ अब थोड़ी सी कुछ आवाज़ आती है। देन ही सेड, मैकबेथ सेज, हु इज देयर, कौन है वहाँ पर? देन एंटर सर्वेंट एंड 2 मर्डरर्स। अब सर्वेंट और 2 मर्डरर्स एंटर करते हैं। ओके, मैकबेथ सेज, नाउ गो टू द डोर एंड स्टे देयर टिल वी कॉल। मतलब जाओ, दरवाजे पे खड़े हो जाओ, जब तक मैं नहीं बुलाऊं तब तक मत आना, जब तक मैं तुम्हें नहीं बुलाऊं तब तक मत आना। ओके, नाउ मैकबेथ सेज, वाज इट नॉट यस्टरडे वी स्पोक टुगेदर? क्या हमने कल बात नहीं की थी? कल ही तो हम बात कर आए हैं, हमने कल ही तो बात की थी। ओके, कल किस चीज़ की बात की थी? बैंक्यो के मर्डर के बारे में, बैंक्यो ऑफ फ्लेंस के मर्डर के बारे में। ओके, देन मर्डरर्स। अब मर्डरर्स क्या कहते हैं? यहाँ पर मर्डरर्स आ चुके हैं जो कि मर्डर करेंगे किसका? फ्लेंस और बैंक्यो का। ओके, तो मैकबेथ कहता है कि क्या कल ही हमने बात नहीं करी थी, अब क्यों आ गए हो तुम आज? कल हमने बात करी तो थी। देन मर्डरर सेज, इट वॉज नॉट प्लीज योर हाइनेस। ओके, इट वॉज सो प्लीज योर हाइनेस। हाँ, हमने कल ही बात की थी, इट वॉज यस्टरडे, हमने कल ही बात की थी। देन मैकबेथ सेज, वेल देन नाउ। ओके, सो देन, तो अब क्यों आ गए हो? वेल देन नाउ, तो अब क्यों आ गए हो, क्या बात करनी है? हैव यू कंसिडर्ड ऑफ योर स्पीचेस? Have you considered of my speeches? Know that it was he in the time past which held you so under fortune. अब यहाँ पर मैकबेथ जो है वो मर्डरर्स को क्या करता है, उनके अंदर एक एनवियस नेचर प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट दिस बैंक्यो के अगेंस्ट एक आप कह सकते हैं एनवियस नेचर प्रोड्यूस करता है मर्डरर्स के अंदर। ओके, Have you considered of my speeches?
नो दैट इट वॉज ही इन द टाइम्स पास्ट विच हेल्ड यू सो अंडर फॉर्च्यून। ओके, अब जो मैकबेथ है वो उन्हें क्या करता है, अगेंस्ट बैंक्यो उन्हें लाइक आप कह सकते हैं चढ़ाता है। ओके, क्या कहता है कि क्या तुम्हें पता है, ओके, कभी तुमने सोचा है कि जो तुम हो, नो दैट इट वॉज ही यहाँ पर बैंक्यो के लिए है, मतलब अभी तक सिर्फ बैंक्यो है जिसकी वजह से तुम्हारा जो फॉर्च्यून है, तुम्हारा जो लाइक भविष्य है, तुम्हारा जो भाग्य है, तुम्हारी जो फेट है, तुम्हारी जो डेस्टिनी है, वो इतनी अंडर फॉर्च्यून है, वो इतनी बेकार है। ओके, तुम्हारी कंडीशन इतनी मिजरेबल किसकी वजह से है, सिर्फ बैंक्यो की वजह से। अब वो चला रहा है, देखो उसे मतलब उसके अंदर एक एनवीनेस प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, मैकबेथ तो क्या कहता है उन मर्डरर्स से कि तुम्हारा जो फॉर्च्यून है वो इतना इल ट्रीटेड क्यों है, इतना मतलब इतना बेकार क्यों है तुम्हारा फॉर्च्यून, जस्ट बिकॉज ऑफ बैंक्यो की वजह से तुम्हारा सारा जो फॉर्च्यून है वो इतना जो है इल ट्रीटेड है पास्ट टाइम से। विच यू थॉट had been our innocent self. This I made good to you in our last conference passed in probation with you. Now he said that ओके, तो मैकबेथ कहता है कि तुम्हारी जो कंडीशन है, तुम्हारी जो इतनी भी मिजरेबल कंडीशन है, वो सब किसकी वजह से है, बैंक्यो की वजह से है। ओके, और इतने लंबे समय से अगर तुम्हें ये लगता है, ओके, तुम्हें ये लगता है कि मैंने ये सब किया है, अगर तुम्हें ये लगता है कि मेरी वजह से सारी तुम्हारी कंडीशन जो है वो इतनी मिजरेबल है, ओके, तो यहाँ पर तुम गलत हो। ओके, मैं बहुत इनोसेंट हूँ, आई एम इनोसेंट। ओके, मैं बहुत इनोसेंट हूँ और मैं and this I made good to you in our last conference pass in probation with you, और ये मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद प्रूव भी करके दिखा दूंगा। ओके, आई प्रूव यू। ओके, मैं बहुत अच्छी तरीके से प्रूव करके दिखा दूंगा पॉइंट बाई पॉइंट कि जो तुम्हारी जो कंडीशन है, तुम्हारी जो मिजरेबल कंडीशन है, वो मेरी वजह से नहीं बल्कि बैंक्यो की वजह से है। ओके, how you were born in hands, how crossed the instruments. Okay, now he said that now how you were born in hands and how crossed the instruments, who wrote with them and all things else that night. मतलब किस तरीके से तुम डिसीव किए गए हो बाई बैंक्यो ने किस तरीके से तुम्हें फंसाया है, किस तरीके से तुमसे डायरेक्टली ही यूज टू वर्क, है ना, किस तरीके से तुम्हें फंसाया गया है। हाउ यू वर ब्रोन इन हैंड्स का मतलब है किस तरीके से तुम डिसीव करे गए हो बाई बैंक्यो। हाउ क्रॉस द इंस्ट्रूमेंट, और किस तरीके से हाउ डिड द डायरेक्टली वर्क एंड who they were working with and enough each other, who wrote with them and all things else that might. The half a soul and a notion crazed say thus that बैंक्यो। मतलब यहाँ पे कहता है कि मैंने सारी चीज़ें तुम्हें एक्सप्लेन कर दी हैं। ओके, कि किस तरीके से जो बैंक्यो है, ओके, किस तरीके से जितना भी गलत तुम्हारे साथ हुआ है, जो भी तुम्हारे साथ जो भी प्रॉब्लम हुई है, जो भी प्रॉब्लमेटिक तुम्हारे लास्ट टाइम हुई है ना, वो सब किसकी वजह से हुई है, वो सारी चीज़ें बैंक्यो की वजह से हुई है। Okay, all the things were done by the बैंक्यो. It was बैंक्यो who did all the crazy things, all the nasty things. Okay, तो I hope the thing is clear to you. मैकबेथ की स्पीच समझ आ गई होगी। यहाँ पर मैकबेथ जो है वो मर्डरर्स को एक तरह चढ़ा रहा है ये कहकर कि जितनी भी तुम्हारे साथ अभी भी जितनी भी तुम्हारे साथ गलत चीज़ें हुई हैं, जो भी तुम्हारे साथ गलत हुआ है, वो सब किसकी वजह से हुआ है, बैंक्यो की वजह से हुआ है। बैंक्यो ही जिम्मेदार है तुम्हारी इस मिजरेबल कंडीशन के लिए। मैं तो बहुत इनोसेंट हूँ, मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, मैं बहुत आई एम वेरी इनोसेंट, और मैं तुम्हें ये फील कराना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम से जितनी भी मिजरेबल कंडीशन, जितनी गलत चीज़ें हो रही हैं, वो सब किसकी वजह से हो रही हैं, बैंक्यो की वजह से हो रही हैं। सारी चीज़ों के पीछे, सारी गलत चीज़ों के पीछे किसका हाथ है, बैंक्यो का हाथ है।
ओके, नाउ फर्स्ट मर्डरर क्या कहता है, यू मेड इट नोन टू अस, मतलब आपने हमें रास्ता दिखा दिया। यू मेड इट नोन टू अस का मतलब है कि आपने हमें बता दिया कि असली ज़िम्मेदार कौन है। मतलब झांसे में आ गए अब मैकबेथ के ये जो मर्डरर्स है, ये उनके जो वेब बिछाया था मैकबेथ ने, उस वेब में है ना, उस नेट में बेसिकली ये मर्डरर्स फंस चुके हैं। और फर्स्ट मर्डरर अब क्या कहता है कि आपने हमें रास्ता दिखाया, उसके लिए थैंक यू। ओके ओके, देन फर्स्ट मर्डरर सेज यू मेड इट नोन टू अस। ओके ओके, फर्स्ट मर्डरर यही कहता है कि आपने हमें रास्ता दिखा दिया, उसके लिए थैंक यू। ओके ओके, नाउ मैकबेथ सेज that I did so and went further, which is now our point of second meeting. Do you find your patience so predominant in your nature that you can let this go? Are you so gospelled to pray for this man, this good man, and this for his issue, whose heavy hand had borrowed you to the grave and beggared your forever? Now Macbeth says, I did so and went further, which is now our point of second meeting. मतलब मैंने ये सब तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि हो सकता है कि हम दोबारा मिलें। ओके, हो सकता है हमारी दोबारा मीटिंग हो, सेकंड मीटिंग हो। और क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जो पेशेंस है वो तुम्हारे नेचर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रिडोमिनेंस का मतलब है स्ट्रॉन्ग, मतलब क्या तुम्हारा जो नेचर है, ओके, क्या तुम्हारा जो नेचर है वो तुम्हारे पेशेंस से ज़्यादा पावरफुल है। तुम्हारा जो पेशेंस है, कहना चाह रहे हैं कि क्या तुम इतने पेशेंटफुल हो कि तुम उन्हें जाने दोगे और तुम उन्हें माफ़ कर दोगे, उन मर्डरर्स को बैंकियों को तुम माफ़ कर दोगे और जाने दोगे? क्या तुम इतने पेशेंटफुल हो? लेट हिम ऑफ द हुक, मतलब क्या तुम उन्हें जाने दोगे? नेक्स्ट ही सेज, आर यू सो गॉस्पेल्ड टू प्रे फॉर हिज गुड मैन, मतलब आर यू सो गॉस्पेल्ड यहाँ पर क्या है, रिलीजियस से मतलब है क्या, मतलब कहना चाह रहे हैं कि क्या तुम इतने रिलीजियस हो। गॉस्पेल्ड यहाँ पर मतलब क्या तुम गॉस्पेल हो। गॉस्पेल यहाँ पर क्या कहा गया है, क्रिश्चियनिटी में गॉस्पेल में बताया जाता है, जब गॉस्पेल एक आप कह सकते हैं एक सब्जेक्ट है बेसिकली, जिसमें पढ़ाया जाता है कि आपको अपने ही एनिमी को, अपने दुश्मनों तक को माफ़ कर देना चाहिए। ओके, गॉस्पेल एक ऐसी प्रीचिंग है आप कह सकते हैं जिसमें बताया जाता है कि आपको अपने एनिमीज़ तक को माफ़ कर देना चाहिए। तो यहाँ पर मैकबेथ कहता है कि क्या तुम इतने गॉस्पेल्ड हो गए हो कि तुम अपने एनिमीज़ तक को माफ़ कर दोगे। टू प्रे फॉर हिज गुड मैन एंड फॉर हिज इशू हुज हैवी हैंड had brought you to the grave and beggared beggared yours forever, मतलब कि क्या तुम इतने अच्छे पर्सन हो कि तुम अपने दुश्मन तक को माफ़ कर दोगे, तुम उसे तक जाने दोगे, एंड तुम उसके मतलब उस आदमी के लिए, बैंकियों के लिए और उसका बेटा मतलब फ्लेंस के लिए प्रे करोगे। ओके, वो पर्सन जिसने तुम्हें ग्रेव मतलब कह सकते हैं जिसमें डेड बॉडीज़ को रखा जाता है, वो पर्सन जिसने तुम्हें ग्रेव मतलब जिसने तुम्हें ग्रेव में मतलब कब्र में धक्का दिया। ओके, और जिसने तुम्हें हमेशा के लिए भिखारी बना दिया, बेसिकली ये कह सकते हैं। ओके, एंड बेगर योर फॉर एवर, मतलब जिसने तुम्हें धक्का दिया और जिसने तुम्हें हमेशा के लिए बेगर बना दिया, भिखारी बना दिया, क्या तुम उसके लिए प्रे करोगे, उसके लिए मतलब इतने पेशेंटफुल रहोगे कि तुम कुछ करोगे ही नहीं उसके लिए। मैकबेथ यहाँ पे मर्डरर्स को चढ़ा रहा है जैसे कि वो बैंकियों को मारे और सारा सस्पिशन किस पे आ जाए, मर्डरर्स पर ही आ जाए, मैकबेथ पर कुछ भी नहीं आए। तो इसलिए वो मैकबेथ मर्डरर्स से कहता है कि क्या तुम गॉस्पेल्ड हो, मतलब क्या तुम इतने पेशेंटफुल हो कि तुम्हारे साथ जो गलत हो रहा है, ओके, तुम्हारा जो नेचर है
वो डोमिनेट कर रहा है ओके तुम्हारे पेशेंट पर। ओके क्या तुम मतलब इतने अच्छे पर्सन हो, इतने कि तुम्हारे साथ कितना भी गलत हो जाए तुम कुछ नहीं करोगे। ओके चाहे तुम्हें भिखारी बना दिया जाए फिर भी तुम कुछ नहीं करोगे। देन फर्स्ट मर्डर सेज वी आर मैन माई लीग, हम मैन हैं, हम आदमी हैं माई लॉर्ड, कि वी आर द मैन। ओके फर्स्ट मर्डर क्या कहता है, हम आदमी हैं, वी आर द मैन। देन मैकबेथ सेज आई इन द कैटलॉग ये गो फॉर मैन एज हाउंड एंड ग्रे हाउंड्स अब यहाँ पर मैकबेथ जो है वो क्या कर रहा है कि डिफरेंट टाइप्स के डॉग स्पीशीज, दीज ऑल आर द स्पीशीज ऑफ डॉग, ये क्या है स्पीशीज हैं डॉग की। अब यहाँ पर डॉग्स की स्पीशीज का एक एग्जाम्पल देता है कि ए इन द कैटलॉग यू गो फॉर मैन एज हाउंड एंड ग्रे हाउंड्स मॉग्रेल्स स्पेनिल्स कर्स Souch, bottle rocks and demi bolts are clutched, all by the name of dogs. यहाँ पर मैकबेथ जो है वो क्या कहता है कि अगर तुम कैटलॉग में देखोगे ओके, अगर तुम जाओगे ओके और यू आर द पार्ट ऑफ अ स्पीशी, सपोज यू आर द पार्ट ऑफ द स्पीशी नोन एज मैन, जिसे हम लोग मैन कहते हैं ओके जैसे कि हाउंड्स है, हाउंड्स इज अ स्पीशी ऑफ डॉग, डॉग की स्पीशीज़ है, जैसे हाउंड्स हो गए, ग्रे हाउंड्स हो गए, मॉर्ग्रेल्स हो गए, स्पेनिल्स हो गए, म्यूट्स हो गए ओके। कर्स का मतलब होता है म्यूट्स, जो कर्स होते हैं उन्हें हम जनरली कहते हैं जो ऐसे ही ऑर्फन डॉग्स होते हैं जिनका कोई नहीं होता है उन्हें हम कहते हैं स्ट्रीट डॉग्स ओके। जो कर्स हो गए म्यूट्स, शैबी लैप डॉग्स हो गए, स्विमिंग डॉग्स हो गए, बुल्फ डॉग्स हो गए ओके, क्रॉस ब्रीड्स, ये सारे हैं तो डॉग ही। कहना चाह रहा है कि जितने भी मैंने कैरेक्टर्स बताए ये सब हैं तो डॉग ही, एक ही नाम से जाने जाएंगे डॉग। बट अगर तुम कैटलॉग में देखोगे, अगर तुम लिस्ट में देखोगे तो इनकी क्वालिटीज़ के हिसाब से इनको डिस्टिंग्विश किया गया है, इनके ब्रीड के हिसाब से इन्हें डिस्टिंग्विश किया गया है, इनकी क्वालिटी के हिसाब से इन्हें अलग किया गया है। कोई बहुत तेज़ भाग सकता है ओके जैसे इसमें कहा है अकॉर्डिंग टू द गिफ्ट which bounteous nature had in his closed whereby he doth receive particular addition from the bill। मतलब कैटलॉग में इनकी पोजीशन इनकी क्वालिटी के हिसाब से लिखी गई है, जिस तरीके की जिस डॉग की क्वालिटी होगी उसी हिसाब से उसका नंबर होगा ओके। दैट राइट्स दैट ऑल alike and so of men। now if you have a station in the file not I'll the worst rank of the manhood say it and I will put that business in your bosom whose execution takes your enemy off, grapples up the heart and love of us who bear our health but sickly in his life which in his death were perfect। मतलब यहाँ पे कहना चाह रहा है मैकबेथ दैट कि आप डॉग को डिस्क्राइब उसके नेचर पर करते हो, जो भी नेचुरल गिफ्ट गॉड ने दिया है डॉग को उस नेचर पर आप उस डॉग को सेपरेट करते हो फ्रॉम जनरल क्वालिटीज़, उन जनरल क्वालिटीज़ से आप उसे मतलब डिफरेंट करते हो ओके। पर वो इन जनरल है तो एक डॉग ही ना। सपोज हम लोग कौन है, ह्यूमन्स है ना, हम लोग ह्यूमन्स हैं, बट कुछ ह्यूमन्स बाहर रहते हैं है ना, फॉरेन में रहते हैं, कुछ ह्यूमन्स कहीं साउथ में रहते हैं, कुछ ह्यूमन्स नॉर्थ में रहते हैं, कुछ ईस्ट में रहते हैं, कुछ वेस्ट में रहते हैं तो सब ह्यूमन्स ही, भले ही अलग अलग डायरेक्शंस में रहते हैं पर हैं तो सब ह्यूमन्स ही। कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ मराठी बोलते हैं, कुछ इंग्लिश, कुछ फ्रेंच, स्पेनिश, मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं पर हैं तो सब ह्यूमन्स ही। तो सेम यही यहाँ पर यही कह रहे हैं कि हैं तो सब डॉग्स ही, भले ही उनकी ब्रीड चेंज हो, उनकी ब्रीड डिफरेंट हो, उनकी क्वालिटी डिफरेंट हो ओके। जैसी जिसकी क्वालिटी होगी वैसे उनका मतलब वो कैटलॉग में ऐसे ही इस तरीके से अरेंज होंगे ओके। पर हैं तो सब सेम तरीके के, दैट इज डॉग ओके। नाउ हियर ही सेज द बेल्यूट फाइल डिस्टिंग्विशेस द स्विफ्ट, the slow, the subtle, the housekeeper, the hunter, everyone according to the gift which bounteous nature had in him closed। मतलब डॉग्स तो सब सेम है पर हम
डॉग को डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, जैसे कुछ डॉग्स जो हैं वो फास्ट होते हैं, कुछ स्लो होते हैं, कुछ क्लेवर होते हैं। ओके, सम आर क्लेवर। सबटिल का मतलब क्या होता है, क्लेवर। ओके, द मीनिंग ऑफ सबटिल इज क्लेवर। कुछ कैसे होते हैं, क्लेवर होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हाउस को, जैसे हम लोग जनरली डॉग्स क्यों लाते हैं एज अ वॉच डॉग्स। जो वॉच डॉग्स होते हैं जो हमारी घरों की देखभाल करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हाउस कीपर्स। कुछ हाउस कीपर्स डॉग होते हैं, कुछ हंटर्स होते हैं जो हंट करते हैं। ओके, एवरीवन अकॉर्डिंग टू द गिफ्ट विच बाउंटियस नेचर हैज इन हिम क्लोज्ड। मतलब सब अपने अपने जो भी नेचर ने, जो भी गॉड ने जैसा गिफ्ट दिया है सबको, उसी हिसाब से सब कैसे हैं, अरेंज हैं अपने आप। Whereby he does receive particular addition from the bill that writes them all alike and so of men। पर आप डॉग को डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, उनके नेचर, उनका जो नेचुरल गिफ्ट दिया है भगवान ने, जो डिफरेंट मतलब कैरेक्टरिस्टिक दी हैं गॉड ने। ओके, जो चीज़, जो जनरल क्वालिटीज़ दी हैं जो एक डॉग से दूसरे डॉग को डिफरेंट बनाती हैं, राइट। कुछ जनरल डॉग मतलब जनरल क्वालिटीज़ दी हैं, पर ओवरऑल इन कॉमन है तो सब डॉग ही, जैसे कि मैंने अभी बताया था। ओके, है तो सब डॉग ही। और सेम इसी तरीके का सेम विद मैन, इट गोज सेम विद मैन एंड सो ऑफ मैन का मतलब है इसी तरीके से मैन के साथ भी है। भले ही डिफरेंट टाइप्स के मैन होते हैं, कुछ मक्कार होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, तो सब मैन ही ना, सबको गॉड ने बनाया है। Okay, now if you have a station in the file not in the worst rank of manhood, say it and I'll put that business in your bosom, who execution takes your enemy off, grapples you to the heart and love of us, who wear our health but sticky in his life, which in his death were perfect। Now here Macbeth says, अब मैकबेथ उन मर्डरर्स से कहता है कि अगर मुझे तुम्हारी स्टेशन का मतलब होता है पोजीशन, अगर मुझे तुम्हारी पोजीशन उस कैटलॉग में लिखनी होती तो मैं तुम्हारी पोजीशन, उन मर्डरर्स से कह रहा है ये, मैं तुम्हारी पोजीशन सबसे लास्ट में लिखता, सबसे एंड में लिखता। ओके, मतलब अगर मुझे तुम्हारी पोजीशन लिखनी होती, ओके, तो मैं तुम्हारी पोजीशन कहाँ लिखता, सबसे डाउन लिखता इन द लिस्ट। ओके, नॉट इन द वर्स्ट रैंक ऑफ द मैनहुड। तुम्हारा जो नाम होता वो तुम्हारा किस में होता, द वर्स्ट मैनहुड में। सेट राइट है ना, सही है ना, तुम्हारा जो नाम होता वो मैं कहाँ लिखता, सबसे नीचे लिखता, सबसे नीचे, राइट। देन he said that and I will put that business in your bosom, whose execution takes your enemy off, grapples you to the heart and love of us, who were our health but sticky in his life, which in his death were perfect। He said, पर मैं तुम्हें एक ऐसा सीक्रेट प्लान बताऊंगा, ओके, जिससे तुम्हारे जितने भी एनिमी होंगे, ओके, जितने भी दुश्मन होंगे, ओके, और जितने भी दुश्मन तुम्हारे पास हैं वो सब मतलब दूर चले जाएंगे, वो सब दूर चले जाएंगे। मतलब मैकबेथ कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हें अपने दुश्मनों से छुटकारा पाना है तो तुम्हें मेरे पास आना होगा, तुम्हें मेरा काम करना होगा, मेरी टीम में आना होगा। ओके, इन योर बोज़म, मतलब अगर तुम्हें दुश्मन से छुटकारा पाना है तो तुम्हें मेरे पास आना होगा। ओके, हुज एग्जीक्यूशन टेक्स योर एनिमी ऑफ, ग्रैपल्स यू टू द हार्ट एंड लव ऑफ अस। मतलब अगर तुम्हें दुश्मनों से छुटकारा पाना है तो तुम्हें मेरे पास आना होगा। ओके, हु वेयर आर हेल्थ बट सिकली इन हिज लाइफ। मतलब जब तक कि एक सर्टेन मैन जो है रहेगा, मैं बीमार रहूँगा, और उसके जो मतलब ये बैंक्यू के लिए कह रहा है मैकबेथ कि जब तक बैंक्यू जो है वो ज़िंदा रहेगा, जब तक बैंक्यू ज़िंदा रहेगा मैं बीमार रहूँगा। ओके, मैं बीमार रहूँगा, विच इन हिज डेथ वर परफेक्ट, और जब उसकी डेथ हो जाएगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। मतलब कहना चाह रहा है कि हु वेयर आर हेल्थ बट सिकली इन हिज लाइफ। जब तक बैंक्यू की लाइफ है, जब तक उसकी लाइफ है तब तक मैं बीमार रहूँगा, तब तक मैं सिक रहूँगा, विच इन हिज डेथ वर परफेक्ट, और जब बैंक्यू मर जाएगा, जब बैंक्यू और फ्लेम्स मर जाएंगे तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊँगा।
ओके, नाउ सेकंड मर्डरर, अब सेकंड मर्डरर कहता है आई एम वन आई एम वन माई लीग whom the wild blows and buffets of the world have so incensed that I am reckless what I do to spite the world. Now second murderer says, I am one my league, मतलब I am the one whom the wild blows and buffets of the world. मतलब मैं एक ऐसा इंसान बचा हूँ, ओके, जिससे इस वर्ल्ड ने, इस दुनिया ने बहुत पीटा है, ओके, जिसने इस दुनिया ने बहुत पीटा है. whom the wild blows and buffets of the world had so incensed that I am reckless what I do to spite the world. and जब तक कि जो आपके एनिमी है वो ज़िंदा रहेंगे, ओके, जब तक कि आपके एनिमी, एज लॉन्ग एज, जब तक आपके एनिमी ज़िंदा रहेंगे, हम लोग बहुत बुरी ज़िंदगी जिएंगे. मतलब जो सेकंड मर्डरर है वो क्या कह रहा है मैकबेथ से कि जब तक आपके एनिमी बैंक्यू और फ्लेंस ज़िंदा रहेंगे तब तक हमारी जो लाइफ है वो बहुत मिजरेबल हो जाएगी, बहुत बुरी हो जाएगी, ओके. और जब आपकी जो बैंक्यू, आपके जो एनिमी है वो मर जाएंगे, तब हम एक बहुत ही अच्छी लाइफ जिएंगे, ओके. मतलब यहाँ पे कहना चाह रहा है, यहाँ पे सेकंड मर्डरर का कहने का मतलब ये है कि जब तक मैं एक ऐसा पर्सन हूँ माय लॉर्ड जिसने हमेशा दुनिया से ताने सुने हैं, हमेशा दुनिया ने उससे मारा है, और इसलिए आई एम वेरी एंग्री, मैं बहुत गुस्से में हूँ, ओके. और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करूँ, मतलब अगर मैं मार भी दूँ एक दो को तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे फांसी की सज़ा हो जाए, क्योंकि मेरे अंदर इतनी गुस्सा भरी हुई है इस दुनिया से, बहुत गुस्सा भरी हुई है, ओके. ये कहना चाह रहा है सेकंड मर्डरर. देन फर्स्ट मर्डरर सेज, एंड आई another so weary with disasters tugged with fortune that I would set in my life on any chance to mend it or be rid on it. और मैं सेकंड, आई एम द अनदर, मतलब मैं सेकंड सफ़रर हूँ, मैंने भी बहुत कुछ सहा है. सेकंड मर्डरर कह रहा है कि मैंने भी बहुत कुछ सहा है, मुझे भी दुनिया ने बहुत मारा है, बहुत सुनाया है, ओके. मैं भी बहुत मतलब बुरी कंडीशन में रहता हूँ, मेरा भी जो लक है वो बहुत बुरा है, ओके. और मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं कोई भी रिस्क लेने को तैयार हूँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, ओके. इवन अगर ज़रूरत पड़े तो मैं अपनी लाइफ को भी दाव पर लगाने के लिए तैयार हूँ, ओके. दैट आई वुड सेट माई लाइफ ऑन एनी चांस टू मेंट इट और टू बी रेड ऑन इट. मतलब मैं भी एक बहुत बड़ा सफ़रर हूँ, मैंने भी बहुत कुछ सहा है, और मैं भी अपनी लाइफ को दाव पर लगाने के लिए तैयार हूँ, ओके. मैं भी अपनी लाइफ को दाव पर लगाने के लिए तैयार हूँ. Now Macbeth says, both of you know Banquo was your enemy. Murderer says, true my lord. मतलब कि तुम दोनों जानते हो कि जो बैंक्यू है वो तुम्हारा कितना बड़ा दुश्मन है. Then Murderer says, हाँ हमें पता है बैंक्यू हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है. Then Macbeth says, so is he mine and in such bloody distance that every minute of his being trust against my nearest of life. Now here he said, so is he mine, और बैंक्यू मेरा भी दुश्मन है, ओके. वो मेरा भी दुश्मन है, और वो इतना बड़ा दुश्मन है कि हर सेकंड वो जितना जीता है, ओके, जितना वो जीता है उतना ही मेरी लाइफ को बहुत दर्द होता है. मतलब कहते नहीं है ना, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, कहते हैं कि वो जितना, मतलब वो जिस तरीके से जी रहा है मुझे उतना दर्द हो रहा है. तो इसी तरीके से यहाँ पे मैकबेथ कह रहा है कि वो मेरा भी बहुत बड़ा दुश्मन है, और वो जब वो जीता है, जब वो एक एक सांसें लेता है, तब तक वो मेरी सांसों को उखाड़ता है, तब तक वो मुझे बहुत परेशान करता है, ओके. मेरी लाइफ को वो बहुत ख़त्म करता है जब वो जीता है. And thought I could with bare-faced paws sweep him from my sight and bid my will
avouch it, yet I must not for certain friends that are both his and mine, whose love I may not drop. अब मैकबेथ कहता है कि and thought I could with barefaced power sweep him from my sight and bid my will avouch it, yet I must not for certain friends that are both his and mine, whose loves I may not drop, but wail his fall, who I myself struck down. और आप लोग तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं बीइंग किंग, मेरे पास तो इतनी पावर है कि मैं किंग होकर 1 सेकंड में बैंक्यू को मरवा सकता हूँ, पर मैं क्यों नहीं मरवा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं मार रहा हूँ खुद? क्योंकि हमारे पास्ट में रिलेशंस कुछ ऐसे थे, बी बोथ वर फ्रेंड्स, हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, ओके हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था, ओके बट अब मुझे रोना पड़ रहा है, अब मुझे बट वेल का मतलब है रोना, अब मुझे मतलब रोना पड़ रहा है, ओके और अब ऐसी कंडीशन आ गई कि मुझे खुद ही उसे मारना होगा, ओके अब मैं खुद उसे मार सकता हूँ, ओके तो इसलिए मैंने तुम लोगों को बुलाया है, तुम लोगों की मदद लेने के लिए, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू, ओके तुम लोगों को बुलाया है, ओके तुम लोगों की मदद लेने के लिए। तो यहाँ पर मैकबेथ कहता है कि तुम लोगों को लग रहा हो कि मैं खुद क्यों नहीं मार रहा हूँ, आई एम अ किंग, आई एम हैविंग दैट टेंडेंसी टू किल हिम, बट उसके कुछ रीजंस हैं, और उसके रीजंस क्या हैं कि हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, ओके और वो एक ऐसा पर्सन था जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, मैं उससे बहुत बिलीव करता था, वो उससे बहुत प्यार करता था इवन, बट सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि अब मुझे उसे मारना पड़ रहा है, और इसलिए मैंने तुम दोनों को हायर किया है क्योंकि मैं उसे नहीं मार सकता, आई कैन नॉट किल हिम, ओके इसलिए मैंने तुम लोगों की मदद ली है। एंड थैंक्स इट इज़ दैट आई टू योर असिस्टेंस डू मेक लव मास्किंग द विजनेस फ्रॉम द कॉमन आई फ्रॉम सन्ड्री वेटी रीजन्स, और इसलिए मैंने तुम दोनों की मदद ली है, ओके इसलिए मैंने तुम लोगों को बुलाया है और इसलिए मैंने तुम लोगों की मदद ली है। एंड मास्किंग द बिजनेस फ्रॉम द कॉमन आई फ्रॉम सन्ड्री वेटेड रीज़न, एंड ही सेज, और हम जो बैंक्यू को मरवा रहे हैं, ओके इसका शक, मैं मास्किंग का मतलब होता है आई विल कवर द बिजनेस फ्रॉम द कॉमन आई फॉर सन्ड्री वेटेड रीज़न, मतलब मैं बहुत से रीजंस के लिए मैं इस सच को कभी बाहर नहीं आने दूंगा कि मैंने बैंक्यू को क्यों मरवाया। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, बैंक्यू को मरवाने के बहुत सारे रीजंस हैं, ओके और इसलिए मैं इस सच को कभी भी पब्लिक में एक्सपोज नहीं होने दूंगा। इसकी रीजंस क्या है? सबसे पहले रीज़न तो यही है कि ऑब्वियसली मैकबेथ के बाद बैंक्यू का सन जो है वो क्या बनेगा? किंग बनेगा। तो इसलिए मैकबेथ बैंक्यू और उसके बेटे को मरवा रहा है। तो इसके कई सारे रीजंस हैं जो वो बाहर पब्लिकली एक्सपोज नहीं कर सकता, ओके बैंक्यू को मरवाने के कई सारे रीजंस हैं जो बाहर एक्सपोज नहीं कर सकता। देन सेकेंड मर्डर सेज वी शैल माई लॉर्ड परफॉर्म व्हाट यू कमांड अस, मतलब हम वो करेंगे जो आपने कमांड किया है, हम बैंक्यू को मारेंगे, ओके हम बैंक्यू को ज़रूर मारेंगे, जो आपने कमांड किया है हम उसे फुलफिल ज़रूर करेंगे। देन फर्स्ट मर्डर सेज दो आर लाइफ your spirit shine through you. Within this hour at most, I'll advise you where to plant yourself, acquaint you with the perfect spy of the time, the moment on it. Now, अब जो मैकबेथ है वो क्या कहता है? Your spirit shine through you, मतलब तुम्हारी जो स्पिरिट्स हैं, आई कैन सी द शाइन इन योर स्पिरिट, इन योर आइज़, मैं तुम्हारी आँखों में वो शाइन दे सकता हूँ। मैकबेथ किन से कह रहा है? मर्डरर्स से कह रहा है, ओके कि जो तुम्हारी शाइन है, तुम्हारी आँखों में शाइन है, उसे मैं देखकर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि तुम ये काम बहुत अच्छे से करोगे। कौन सा काम? बैंक्यू और फ्लेंस को मारने का। Within this time, at most, I'll advise you where to plant yourself,
acquaint you with the perfect spy of the time, the movement of it. और कुछ देर में, विद इन एन आवर, कुछ देर में, कुछ घंटों बाद मैं तुम्हें बता दूंगा कि कहाँ तुम्हें रुकना है, ओके, और कहाँ तुम्हें मारना है, ओके, कहाँ तुम्हें मारना है। और ये काम आज रात ही हो जाना चाहिए, ओके, ये जो काम है ये आज रात ही हो जाना चाहिए। फॉर इट मस्ट बी डन टू नाइट एंड समथिंग फ्रॉम द पैलेस ऑलवेज thought that I require cleanness, and with him to leave no rubs, no blotches in the work, Flens his son, that keeps him company, whose absence is no less material to me than in his is his father's. Fathers must embrace the fate of that dark hour. Resolve yourselves apart. I'll come to you, Anan. Now he says कि मैकबेथ सेज कि ये जो मर्डर है बैंक्यू ऑफ फ्लेंस का, ये आज रात ही हो जाना चाहिए। इट शुड बी डन टू नाइट, इट फॉर मस्ट बी डन टू नाइट एंड समथिंग फ्रॉम द पैलेस। समथिंग फ्रॉम द पैलेस का मतलब पैलेस से दूर, मतलब मेरे पैलेस से बिल्कुल दूर होना चाहिए मर्डर, ओके, जिससे कि मुझ पर कोई भी सस्पिशन नहीं आए, जिससे कि मुझ पर कोई भी सस्पिशन या कोई भी शक ना करे, ओके। नेक्स्ट, and with him to leave no rubs, no watches in the work, Flens his son, that keeps him company. Okay, and now according to plan के according तुम्हें दोनों को मारना है, फ्लेंस एज वेल एज बैंक्यू। फ्लेंस उसका बेटा है जो उसे कंपनी दे रहा है, उसके साथ जा रहा है, तुम्हें उसे भी मारना होगा, ओके, तुम्हें फ्लेंस और बैंक्यू दोनों को हो मारना होगा, okay. Then he says, whose absence is no less material to me than is his father's, must embrace the fate. और जितनी इम्पोर्टेंट बैंक्यू की मौत है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ्लेंस की मौत है, क्योंकि फ्लेंस विल बी द फ्यूचर किंग, है ना। बैंक्यू थोड़ी फ्यूचर किंग होगा, फ्लेंस फ्यूचर किंग होगा। तो मैकबेथ कहता है कि बैंक्यू से ज़्यादा फ्लेंस की मौत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी मौत ज़रूर होनी चाहिए, ओके। वो फ्लेंस से मुझे छुटकारा पाना है, फ्लेंस को की मौत ज़रूर होनी चाहिए, ओके। नाउ देन इन हिज फादर्स मस्ट एम्ब्रेस द फेट ऑफ दैट डार्क आवर, रिजॉल्व योरसेल्फ अपार्ट, आई विल कम टू यू, एनन। फ्लेंस और बैंक्यू दोनों में से मुझे दोनों की मौत बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को ही मरना चाहिए, ओके, तुम्हें दोनों को ही मारना है, ओके। और तुम्हें खुद ही अपना मतलब हियर ही सेज दैट मस्ट एम्ब्रेस द फेट ऑफ दैट डार्क आवर, रिजॉल्व योरसेल्फ अपार्ट, आई विल कम टू यू, एनन। और अपने आप ही यू रिजॉल्व ऑल द थिंग्स बाय योरसेल्फ, अपने आप ही यू मतलब अपना दिमाग लगाओ कि तुम्हें कहाँ ये सब चीज़ करनी है, ओके, किस जगह पे ये मतलब उन दोनों को मारना है, ये तुम्हें खुद सोचना होगा, ओके। तुम कहाँ मर्डर करने जा रहे हो, किस जगह पे तुम्हें मर्डर करना है, तुम्हें खुद सोचना होगा, ओके। मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलूँगा, ओके, आई विल कम टू यू, एनन। मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलूँगा, बाय, एनन। देन मर्डर सेज, मतलब मैकबेथ यहाँ पे कह रहे हैं कि बैंक्यू की मौत तो है ही इम्पॉर्टेंट, पर उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ्लेंस की मौत है। मतलब दोनों को तुम्हें मारना होगा, बहुत सावधानी से मारना होगा, दोनों की मौत बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी इंपॉर्टेंट बैंक्यू की मौत है उतनी ही इंपॉर्टेंट फ्लेंस की मौत है, ओके। देन मर्डरर सेज, वी आर रिजॉल्व्ड माय लॉर्ड। हाँ, हम डिसाइड कर लेंगे मतलब हमने डिसाइड कर लिया है, वी आर रिजॉल्व्ड माय लॉर्ड, हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें कहाँ उन्हें मारना है, ओके, हमें कहाँ उन्हें मारना है। Then Macbeth says, I'll call upon you straight, abide within. मतलब मैं तुम्हें जल्दी बुला लूँगा, मैं तुम्हें जल्दी ही बुला लूँगा, तब तक तुम जाओ, अंदर रहो। abide within मतलब अंदर रहो। बट जो मर्डरर्स हैं वो चले जाते हैं दोनों, ओके। देन मैकबेथ सेज, इट्स कंक्लूडेड बैंक्यू, thy soul's flight, if it find heaven, must find it out tonight. और मैकबेथ कहता है कि ये आज ही डिसाइड हो जाएगा, ओके, ये आज ही डिसाइड हो जाएगा बैंक्यू,
कि तुम्हारी सोल कहाँ, हेवन में जाएगी या हेल में जाएगी। ओके, ये आज ही डिसाइड हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ये कहता है मैकबेथ, इट इज़ कंक्लूडेड, ये कंक्लूड हो चुका है, ये जो डील है ये हो चुकी है बैंक्यू। द सोल फ्लाइट इफ़ इट फाइंड हेवन मस्ट फाइंड इट आर टू नाइट। मतलब अगर उसे हेवन मिलेगा, ओके, अगर तुम्हारी सोल को हेवन मिलेगा, हेवन क्यों मिलेगा? क्योंकि कभी भी बैंक्यू ने किसी के साथ गद्दारी नहीं की थी। ओके, ही वॉज अ वेरी नोबल पर्सन अनलेस मैकबेथ। ओके, जैसे मैकबेथ ने गद्दारी कर दी थी सबके साथ, वैसे बैंक्यू हमेशा लॉयल रहा था। तो यहाँ पर मैकबेथ कहता है कि ये आज डिसाइड हो जाएगा कि तुम्हें हेवन मिलेगा, मतलब आज रात तुम्हें ज़रूर हेवन मिलेगा, आज रात तुम ज़रूर हेवन में जाने वाले हो। ओके, और यहीं पर मैकबेथ जो है वो भी चला जाता है एंड द सीन इट ऑल्सो एक्सुएट। ओके, आई होप आपको जो सीन है वो समझ आया होगा। बस इतना ही बड़ा सीन था आपका। ओके, सो आई होप द सीन इज़ क्लियर टू यू। काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीन है, इसे काफ़ी अच्छे से आपने देखना है। ओके, और काफ़ी बड़ा सीन है। सो दैट्स इट गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय गाइस।